everyone. Good evening. Jayan sir, please write your query. Why are you looking? You want to ask something? I'm already in the class and still 1 minute to go for the class. Do you have a query? Please write. Jayant Bose sir. Let the class start. It's not 6:30 yet. No, I was just looking for you while I was guessing it. Okay, sir. That That's way. it. I thought maybe there is a query. No, I no, was no, like waiting for the class to begin, sir. no, no, no. I 6:30 just, sharp. that's Yes. fine. Because Thank you. last time you came very early, no? So that's what I was Yeah, wondering. I am still this time also since 6:15 I'm in the class. But my Okay. camera is off because I start at 6:30 then. Right? Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Let's wait everybody for the next 2 minutes. 2 मिनट और वेट करते हैं. थोड़े से participants और आ जाएंगे. Thank you. Okay then everyone, I am here. It's 6:31. So Vasugi ma'am, there is a small request I would like to make that kindly don't get confused and write up such things that I am feeling like this, I am feeling like that. Please don't use this group for all this. This is for sharing information of the class. What you feel, if you want to follow, you can. But if you take my advice, what I am teaching in the class, kindly follow that. आप क्या फील करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट तो है, बट वो क्या हमारे करिकुलम से मैच कर रहा है, टारगेट है. ठीक है वासुकी मैम, थैंक यू सो मच. एंड आई गेस देर इज समबडी इन द क्लास, भरत जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. रोज सुबह प्रेयर को रीशेयर नहीं करना है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा. आपको किसी ने नहीं कहा है कि आप उसको ग्रुप में शेयर करें. वो आपके पर्सनल चैंटिंग के लिए है. इट इज फॉर योर ओन पर्सनल चैंटिंग. यू यूज इट, यू डोंट हैव टू सेंड इट टू पीपल. ओके, want to do it, you do it once a day, twice a day, 4 times a day. It is completely your call. ठीक है. Solomon sir, Ma'am, Dr. Solomon, can you please mute? ma'am, I am driving. That's why I have to inform you. I cannot be able to open the video. Thank you, ma'am. Sir, okay, no problem, sir. You can mute yourself. No worries, sir. No worries. Please drive safe. Okay. Okay, Solomon sir. ठीक है जी. So, no confusion, please. ठीक है, you can do the chanting of the prayer as many times as you want. And the other thing जो काफी लोगों को शायद आ रही है, there is some more, one more participant. I don't know the name because they have a very small name written. So, ऐसा कुछ नहीं होता है. मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आप ये बोल दोगे जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, तो इससे आप नेगेटिव बोल रहे हो, एंग्री वर्ड यूज कर रहे हो, तो एंग्री हो जाओगे. ऐसा नहीं होता है. In daily routine things, we use certain words which are not positive, but that doesn't mean we become negative. Okay? A battery also has a positive charge and a negative charge. That doesn't mean the battery is working on a negative way. We have to hold the hands of reality. Since the first class, I am telling you all that please hold the hands of reality. Reiki is very good, occult is very good, but you have to hold the hands of reality. अगर मुझे thyroid है, if I have thyroid, I have to take the medicine also. Side by side doing Reiki. It is not that I leave the medication and I start running here and there. Okay, it is fine. It will be fine. No. You have to hold the hands of reality. I have to bring the situation under control. Otherwise, this thyroid can convert into hyper or hypothyroidism and further Hashimoto's disease, जो thyroid gland को ही खत्म कर देता है. ठीक है? Okay, Sampath Rao sir, no problem. If you have not attended the first class, you might have seen the video. It was shared in the class 6-7 days ago. 27th, 28th, it was shared in the class. If you have not seen the video, I'm again telling in the class. Just open the display image of the group, sir. Open the group description. Siri, ikkada? Madan Mohan sir, please mute yourself. अपने आप को mute कीजिए sir. Okay, man. Sorry. Thank you. Okay. So, Sampath Rao sir,
आपको क्या करना है, यू हैव टू ओपन द ग्रुप डिस्क्रिप्शन, वहां पर डेट्स के आगे in front of the dates you have class links. You watch the class, it was a generic class, introductory class. So if still you have any queries or questions, you may ask, right sir? Okay everyone, so I hope your Diwali vacation was good. Everybody had a good time. Okay ji, very nice. I hope everybody was safe, everybody enjoyed, and still the festivities are not over. The festive season is on till Lodi, I guess, or the New Year's or Gudi Padwa. वो तब तक चलेगा बहुत लंबा. ठीक है. So I hope you all did your prayers. Dobby ma'am. Okay. I hope you all did your prayers. है ना, सबने अपनी अपनी prayers की होंगी. मदन मोहन सर, आप अपने आप को प्लीज अपना कैमरा ऑफ कीजिए सर. The class is getting distracted. यस सर, अगर आपको लेट कर क्लास अटेंड करनी है प्लीज कैमरा ऑफ कर लीजिए आराम से. थैंक यू. दीपा जी गुड इवनिंग. यस उषा मैम, मेरी भी दिवाली अच्छी थी. ओके जी, वेरी नाइस. सुष्मिता मैम, चलिए. सुनील जी, बहुत अच्छी बात है. ठीक है. सो वन टाइम सबने अपनी अपनी प्रेयर्स कर ली होंगी, कर रहे होंगे. ये आप कर सकते हैं जब तक आप करना चाहें. फॉर लाइफ करना चाहें लाइफ कर सकते हैं. इफ यू वांट टू डू इट फॉर 2 months 3 months, जैसा आपको अच्छा लगता है. ठीक है. ये छोटी सी प्रेयर है, 4 to 5 seconds लगते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है. सो डोंट स्ट्रेस. माधवी जी, वेरी गुड इवनिंग एंड राधे राधे आपको भी. ठीक है जी. सो आई गेस वी आर 66 people in the class. So let's start with today's class. सबका ड्यू परमिशन है. गिव मी अ थम्स अप. क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है. सौरभ जी, थैंक यू. ओके, देयर आर अदर पीपल हु कैन गिव मी अ थम्स. थैंक्स वासुगी. चलिए. ओके ओके माधवी मैम, चलिए स्टार्ट करते हैं. लोकेश जी, संपत राव जी, सुखदीप जी, सुमित्रा मैम. ठीक है, चलो. आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. ठीक है जी. प्रतिभा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम. आई हैव टू टेक द क्लास इफ यू आर ट्रैवलिंग. यू मे चूज टू बी इन द क्लास और यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग टुमारो, जैसे आपको ठीक लगेगा. द क्लास हैज टू बी कंडक्टेड मैम. ओके ओके मदन मोहन सर, गुड. चलिए. ओके, द शेयरिंग इज स्टिल नॉट टर्न्ड ऑन. जस्ट वेट एवरीवन, आई जस्ट कॉल बैक इन द ऑफिस. गिव मी 1 minute. ओके, थैंक यू. Quality. सुखदीप जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लीज डोंट राइट एनीथिंग अबाउट योर ओन पर्सनल थिंग्स. अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप नहीं ऑन करना चाहते हैं कैमरा, मत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप क्लास में हैं, ये बहुत अच्छी बात है. देखिए, ये चीजें आप मत लिखिए. यू नेवर नो कौन किस एनर्जी को पकड़ता है. बाकी लोगों को कोल्ड फीवर नहीं है, उन्हें भी हो सकता है. दिस इज अ क्लास हाई ऑन एनर्जी. आप भी ये बोलिए कि मैं हील हो रहा हूं या हो रही हूँ. तो पॉजिटिव चीजों को यहाँ यूज कीजिए. ठीक है. आई डोंट नो उषा मैम, दिस इज अ टीचिंग क्लास नॉट अ हीलिंग क्लास. आई डोंट नो अगर आपकी मेड आपसे रूड है या नहीं. प्लीज मैम सोच के देखिए, क्लास रेकी सीखने के लिए है. मेड या एंगर इश्यूज आप खुद डील करेंगे. आपने अभी तक एक क्लास लगाई है ना, अभी आपने कुछ सीखा है. 9 classes पूरी लगाई है मैम. Learn the art of Reiki. Practice is for more 21 days. Then you will see how you deal with it. In one class, nobody can do what anything, or you have to be very, very, how do I say, patient. Don't write anything. अपनी personal issues को please group में share ना करें. ठीक है.
Not everybody wants to hear or listen all this, and I will also not be able to help you with this, because I have told you since the very first class, this is a teaching class, not a healing class. मैं यहाँ आपका mentor हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है? I am not here to just, you know, what do I say? Take on the other things. Your voice was okay initially, but now it's very low. Can everyone hear me? वासुकी मैम ठीक से सुन पा रहे हो मुझे? अपना सिस्टम Yes, चेक ma'am. Loud and clear. Perfect. थैंक यू अभिजीत सर. ठीक है, थैंक यू अभिजीत सर. कोई बात नहीं, जिस किसी को कुछ इंटरनेट इशू आ रहा है तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आप क्लास को. आई होप मैं कर पाऊंगी अब. यस, आई हैव द राइट्स नाउ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट एवरीवन. आई हाईली अप्रिशिएट. We are in the class. Well, I welcome you all. We are in the second class today. आज हम affirmations करने वाले हैं हर चक्रा की. Each chakra has a specific affirmation. सब पढ़ने वाले हैं. कुछ कार्मिक lessons होते हैं चक्रास के, आज वो कवर करेंगे. और पहला चक्र आज हम स्टार्ट करेंगे, द रूट चक्रा. Be very very vigilant in the class so that you don't miss out on things. ठीक है जी? Okay. So फर्स्ट इज द एफर्मेशंस फॉर 7 चक्रास. 7 चक्र हैं आपके, उनकी क्या क्या एफर्मेशंस हैं हम वो करने वाले हैं. ध्यान दीजिएगा. यू ऑल केम फ्रॉम द मास्टर क्लास. इन द मास्टर क्लास आई टॉट यू ऑल दैट देयर आर 7 चक्रास इन योर बॉडी. ओके, यू हैव 7 चक्रास इन योर बॉडी. आई हैव 7 चक्रास इन माई बॉडी. इट गोज लाइक दैट. ठीक है ना? हम सबकी बॉडी में 7 चक्रास हैं, and 7 chakras have 7 different colors. Each chakra has a color which will never change. हर चक्र का एक कलर है जो कभी नहीं बदलेगा. आप जब हीलिंग्स को स्टार्ट करेंगे, आप सब अपनी प्रोफेशनल हीलिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे, क्लाइंट्स की हीलिंग करेंगे, फैमिली मेंबर्स की हीलिंग करेंगे, उनके चक्रास भी सेम ही रहने वाले हैं. अगर मेरा रूट चक्रा रेड है तो अभिजीत सर का भी रेड है, वासुकी का भी रेड है. ऐसा नहीं होता है कि किसी को कोई स्ट्रेस हो रहा है तो उसका पर्पल हो जाएगा. नहीं, चक्रास के कलर जो है वो डिफाइंड है. ठीक है, एंड दे कैन नेवर बी चेंज. ठीक है, सो वी हैव 7 चक्रास. 7 चक्र by the name of the 7 chakras are like Mooladhara, the first chakra. सेकेंड चक्रा इज द स्वाधिष्ठान. मैं अभी क्लास के बाद पीडीएफ शेयर कर दूंगी, स्ट्रेस नहीं लेना, नोट्स अभी आ जाएंगे आपके पास. ठीक है जी? द सेकेंड चक्रा इज द स्वाधिष्ठाना. द थर्ड चक्रा इज द मणिपुरा चक्र, आपका नाभि वाला चक्र होता है जो. द फोर्थ चक्रा विच इज योर हार्ट, जहां आपका दिल होता है, दैट इज द विशुद्धा चक्र. ठीक है, उसके बाद आपका थ्रोट चक्रा होता है हार्ट चक्रा से ऊपर, जहां आपका गला है. ठीक है जी? एंड देन इज योर थर्ड आई, आईब्राउज के बीच में. एंड देन ऑन द टॉप ऑफ योर हेड इज योर क्राउन चक्रा. ठीक है एवरीवन? सो एफर्मेशंस का क्या मतलब है? एफर्मेशंस का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें जो हम खुद से करते हैं कि हमें तसल्ली हो. हम कई बार किसी मुसीबत में फंस जाते हैं. When we are stuck in a bad situation, what do? We start saying ourselves, अरे कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, it will be fine, it will be fine. These are affirmations which you say to yourself. You rewire your brain. ठीक है, आपका ब्रेन हर चीज को सुनता है, याद रखता है. आपका कॉन्शियस ब्रेन यहाँ है. यू मे फॉरगेट व्हाट यू हर्ड राइट नाउ. ठीक है, आपका सब कॉन्शियस ब्रेन यहाँ है. ठीक है, सो योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. मे बी योर कॉन्शियस ब्रेन इज रिकॉर्डिंग दैट मैम वाज सेइंग थिंग्स, शी वाज सिटिंग. ओके, सबकॉन्शियस ब्रेन चीजें रिकॉर्ड कर रहा है कि मैम ने स्पेक्टिकल्स लगाई थी, उनके पीछे ग्रीन कलर की वॉल थी, उसमें लाइट्स थी. और ये चीज आपको कब याद आएगी? आज नहीं याद आएगी. 4 days 5 days लेटर कभी ड्राइव कर रहे थे, कभी बैठे कुछ खाना खा रहे थे, सडनली स्ट्राइक करेगा. तो ये सबकॉन्शियस ब्रेन होता है हमारा, जो चीजें हमें भूलने नहीं देता. ठीक है, सो देयर आर द 7 चक्रास जस्ट वी डिड. ठीक है, सो द क्राउन चक्रा इज हियर. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग वेरी केयरफुली. जो बातें आप बोलते हो वो आपका ब्रेन याद रखता है.
नेगेटिव टॉक से ब्रेन नेगेटिव हो सकता है, किसी तरीके की नेगेटिव चीज पढ़ी है, नॉलेज ले रहे हो, उससे ब्रेन नेगेटिव नहीं होता। इस हिसाब से अगर नेगेटिव चीजें बोलने से या नेगेटिव चीजें पढ़ने से हम अगर नेगेटिव हो जाते, सो ऑल डॉक्टर्स एंड ऑल हीलर्स वुड हैव बीन नेगेटिव। डॉक्टर्स तो पढ़ते ही बीमारियों के बारे में है, वो यही पढ़ते हैं, हार्ट अटैक, रुक गया दिल, अब ये कॉरोनरी आर्टरी में ये हो गया, वो ये उल्ट, ऐसा थोड़ी लिखा है बुक्स में, माय हार्ट इज ओके बट इट्स नॉट वर्किंग फाइन, इसको ऐसे करके बोलो। नो, दिस इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल इन रियल लाइफ। आप देखिए मेरे साथ इस 9 क्लासेस में ना, मेरा एक फंडामेंटल आप सीख लीजिए, रियलिटी का हाथ नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पर ना ढोंग नहीं करेंगे हम, ठीक है? ये जो अजीब सी चीजें होती है ना, गिमिकी स्टफ, ऐसा बोलेंगे, वैसा घुमा लेंगे, नो, वी विल से थिंग्स हाउ दे आर, तभी कोई हम पे ट्रस्ट करेगा। अगर कोई बहुत गिमिकी हो जाता है ना, तो आपका ट्रस्ट टूटता है। आप सोचिए, आई एम कमिंग इन दिस क्लास, आई एम वेयरिंग दिस बिग बिंदी ऑन माय हेड, ऑल क्रिस्टल्स इन माय हैंड्स, एंड आई एम सिटिंग लाइक दिस एंड टॉकिंग। आपको आफ्टर 10-15 मिनट्स लगेगा शी इज सो गिमिकी, मे बी वो स्पेशल तैयार होती हैं कि हाँ भाई क्लास है, ऐसे कोई अपने घर में तो नहीं रहता होगा। सो वी ऑल ह्यूमंस लाइक थिंग्स विच आर एक्चुअली लाइक इट। ऑर्गेनिक चीजें सबको अच्छी लगती हैं। आप आज से ही, पिछली क्लास से ही हीलिंग सीख रहे हो, आप हीलर्स बनने वाले हो, तो प्लीज आप भी गिमिक्स मत करना। जितनी गिमिकी चीजें करोगे, क्लाइंट्स आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। जैसे आप हैं, बी ट्रू टू योरसेल्फ। इतनी अच्छी हीलिंग्स आप कर पाएंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाएंगे, ठीक है? ऑलवेज होल्ड द हैंड्स ऑफ रियलिटी, डोंट बी गिमिकी, बी वेरी ट्रू टू व्हाट यू आर। जैसे आप हो वैसे रहिए, बहुत बहुत अच्छे से सब होगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द 7 एफर्मेशंस। द फर्स्ट चक्र इज द रूट चक्र। हमारा पहला चक्र रूट चक्र होता है। इसे हिंदी में मूल आधार कहते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मूल आधार? मूल आधार मीन्स बेसिक फाउंडेशन, ठीक है? हमारे शरीर की बेसिक फाउंडेशन है हमारा मूल आधार चक्र, ठीक है? सो जो हमारा मूल आधार चक्र है वो हमारी बेसिक फाउंडेशन है। और वो क्या कहता है? मूल आधार चक्र कहता है, आई एम सेफ, आई एम रूटेड एंड आई एम ग्राउंडेड। यानी कि मैं यहाँ पर सेफ हूं, मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हूं, और मैं अपनी जमीनी चीजों से ऊपर नहीं उठा हूं। देखिए, हम सबका एक बेसिक नेचर है, हम सबका एक बैकग्राउंड है, उसकी कुछ इंटीग्रेटेड वैल्यूज है, हमें उसके साथ जुड़कर रहना है। डोंट लीव योर इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज फॉर समथिंग जो अभी आपको मिला नहीं है, ठीक है? दैट इज वाई आई से डू नॉट डू गिमिक्स। किसी को गिमिक्स अच्छे नहीं लगते हैं। अगर मैं आपसे घुमा घुमा कर हल्की हल्की आवाज में कुछ डिफरेंट तरीके से बात करूंगी, आप मेरी क्लास में 1 दिन 2 दिन आ सकते हैं, बट आप लॉन्ग टर्म नहीं आएंगे। आप बोलेंगे दिस इज सम, कुछ इसमें गड़बड़ है, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, दिस इज नॉट ट्रू। सो आफ्टर 9 क्लासेस आप में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा, अगर आप फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप टू द टी, दैट यू विल बी वेरी क्लियर इन योर अप्रोच। जो लोग अपनी अप्रोच में क्लियर होते हैं, उनका थ्रोट चक्रा खराब नहीं होता। जब थ्रोट चक्रा खराब नहीं होता, बातें अच्छे से एक्सप्रेस की जाती हैं, यू गेट ग्रोथ इन योर करियर, यू गेट ग्रोथ इन योर फ्रेंड सर्कल, एंड यू गेट ग्रोथ मेंटली ऑल्सो, ठीक है? सो रूट चक्रा कहता है, मैं जमीनी तौर पर खुद से जुड़ा हूं, यानी कि मूड स्विंग्स नहीं है, छोटी छोटी बात पे अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान मैं नहीं समझता हूँ। आई एम वेरी ग्राउंडेड, जो मुझे आता है बहुत अच्छी बात है, बट वी आर ऑल लर्नर्स हेयर, मुझे और सीखना है। यहाँ पर कहने के लिए मैं आपकी मेंटोर हूँ, बट हर क्लास में, हर बैच से आई लर्न न्यू थिंग्स। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत अच्छे इंसाइट्स होते हैं शेयर करने के लिए, विच आई ऑल्सो लर्न। सो अगर कोई आपको ऐसा मिल जाए जो ये कहता हो उसे सब आता है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मुझे सब आता है, तो आप प्लीज समझ जाएं रूट चक्र इम्बैलेंस हो रहा है इसका। इसको अभी ग्राउंडिंग ही नहीं है। जिसकी फाउंडेशन ही नहीं है, वो आपको क्या ग्राउंडिंग देगा, ठीक है? द सेकेंड, इसका कलर होता है रेड, ठीक है? ये इसकी एफर्मेशन जो है ना, आगे मैं आपको और भी एफर्मेशंस देने वाली हूँ सारे चक्रास की, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर चक्र की 7-7, 8-8, 10-10 एफर्मेशंस मिलेंगी,
आपको अपने पसंद की एक चूज करके बोलनी है। अगर आपको उन सारी क्लासेस में वो एफर्मेशंस नहीं बोलनी और आपको सिर्फ ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे स्लाइड देख रहे हो कि मैम मुझे तो रूट चक्र की यही एफर्मेशन, सेक्रल की ये, सोलर की ये, हार्ट की ये, थ्रोट की ये, थर्ड आई की ये और क्राउन की यही एफर्मेशन पसंद आ गई, मैंने तो यही बोलनी है, तो आप यही बोलिए फॉर लाइफ। पर एफर्मेशंस कीजिए। एफर्मेशंस करने का कोई समय नहीं होता। दिन में 1 बार करो, 4 बार करो, 50 बार करो, 200 बार करो, 10,000 बार करो, पूरा दिन इसकी 108 की माला फेरो, जैसा आपको पसंद है आप कर सकते हो। आप आजकल लोग अपने रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर स्टिकी नोट्स लगाते हैं, राइट, या फिर वाइट बोर्ड्स लगा देते हैं मार्कर वाले, तो आप उस पे भी ये एफर्मेशंस लिख के रख सकते हो। जितनी बार आप अपना रेफ्रिजरेटर खोलोगे, आपकी आंख इस पे जाएगी, आप इसे पढ़ोगे, तो अपने आप एफर्मेशंस पढ़ी जाएंगी। आप अपनी किसी नोटबुक में लिख सकते हो जो आप बार बार खोलते हो, किसी छोटे से चार्ट पेपर पे बना के अपने रूम में पेस्ट कर सकते हो, आपका अपना कॉल है। इसका प्रिंट आउट निकाल कर पेस्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो रूट चक्रा की एफर्मेशन है कि मैं सेफ हूं, मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हूं, दैट आई एम रूटेड एंड आई एम ग्राउंडेड। आई एम टेकिंग दिस क्लास। मंजू मैम प्लीज म्यूट योर सेल्फ। देख हमारे भाई के मन ठाई तो है नहीं, ठीक है, मन ठाई तो हमरे करती, लेकिन मन ठाई तो है। मैम लियो मैं अपने आप को मैं म्यूट सिर्फ कीजिए, हमें आपके घर की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ओके, मैम अब आप ही सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैंने कर दिया है सर, बट आई हैव स्पेसिफिक राइट्स बिकॉज फिर किसी का कोई क्वेश्चन होता है ना तभी। कोई बात नहीं, मैंने कर दिया है अभिजीत सर, थैंक यू। ठीक है, तो प्लीज अपने फोन्स को छुइए मत, छोड़ दीजिए 2 घंटे के लिए। मंजू मैम प्लीज डोंट टच इट अगेन एंड अगेन, छोड़ दीजिए अपने फोन की स्क्रीन को। चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है, चलो गुड। सो दीज आर द 7 चक्र एफर्मेशंस। मैं आपको एक एक एफर्मेशन बताने वाली हूँ, आपको जो ठीक लगता है कर लीजिए। इफ यू वांट टू पेस्ट इट समवेयर, आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो सेक्रल चक्र की क्या एफर्मेशन है? सेक्रल चक्र सेज आई एम क्रिएटेड आई सेलिब्रेट माई सेक्सुअलिटी। ओके, मुझे एक बात याद आई, बीच में डिस्टर्बेंस हुई थी जो इन लोगों की वजह से, आई फॉरगॉट। ओके, सो देयर वाज अ क्वेरी इन द लास्ट क्लास कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इसको हिंदी में लिखा जाए। देखिए, पीडीएफ एंड नोट्स विल ऑलवेज बी इन इंग्लिश। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास इट वाज टोल्ड, क्लास में हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन में लेती हूँ। अगर किसी को हिंदी नोट्स बनाने हैं, आप 2 या 3 बार क्लास को रिपीटेडली सुन सकते हैं, आपके नोट्स खुद ही बन जाएंगे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है आपके ब्रेन में, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन में ही क्लास चला रही हूँ ताकि किसी का कुछ छूटे नहीं, ठीक है जी। नोट्स एंड पीडीएफ आर इन इंग्लिश ओनली सिंस द डे 1, सो दे आर गिवन लाइक दैट इज नॉट इन माई हैंड्स, ठीक है जी। चलो, सो द सेकेंड चक्र इज द सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र कहाँ होता है? वेयर इज योर सेक्रल चक्र? प्लीज टच योर टमी वेयर यू टाई योर बेल्ट, जहां आप अपनी बेल्ट का बटन बांधते हैं, ठीक है, या बेल्ट का बकल बांधते हैं, दैट इज योर नाभि से 2 उंगली नीचे इज योर सेक्रल चक्र। 2 fingers डाउन योर बेली बटन इज योर सेक्रल चक्र। इट इज कॉल्ड द स्वाधिष्ठान। इट मीन्स स्वयं का स्थान, आपकी अपनी जगह। यहां आप क्या अफर्मेशन दे रहे हैं? आई एम क्रिएटिव, यानी कि मेरा क्रिएटिविटी क्वोशंट हाई है, एंड आई सेलिब्रेट माई सेक्सुअलिटी। सेलिब्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी डजंट मीन्स ओनली सेक्सुअलिटी। आप अपनी ग्रूमिंग कैसे करते हैं, हाउ वेल यू ग्रूम योर सेल्फ, हाउ मच यू कॉम्प्लीमेंट अदर्स, ठीक है। वेन यू कॉम्प्लीमेंट अदर्स, आप अपने आप को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं अगर आपको कह रही हूँ आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैंने भी एफर्ट किया है कुछ रेडी होने में, आप मुझे सामने से कहेंगे ना मैम सेम टू यू। अगर मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे आपसे क्या ही होगा, एक ह्यूमन का क्या नेचर है, आई विल स्टार्ट गेटिंग जेलस ऑफ यू। ये पता नहीं कैसे मैनेज कर लेता है या कर लेती हैं, ये हमेशा अच्छी ही लग रही हैं, इनको कहो ही मत, मैं तो इनके बारे में नेगेटिव बोलूंगी, देखो इसके पास तो तैयार होने का बहुत टाइम है, इनके पास तो समय ही बहुत है। नहीं, उनके पास बहुत समय नहीं है, आप समय नहीं निकालना चाह रहे। हमारा चक्रा ब्लॉक्ड है। जो तैयार हो रहा है, अच्छे से रह रहा है, ग्रूम्ड है, हाइजीन मेंटेन कर रहा है, सबकी आंखों को देखने में अच्छा लग रहा है, वो इंसान का सेक्रल चक्र हमेशा पॉजिटिव एंड राइट है, ठीक है।
सो इसके बारे में हम यही बोलते हैं, चलते फिरते जितनी मर्जी बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आई एम क्रिएटिव एंड आई सेलिब्रेट माई सेक्सुअलिटी। अगर आपको लगता है मैम मेरा एक चक्र खुला है 6 बंद हैं, जो खुला है उसकी एफर्मेशन ना करूं, तो ऐसा ना करें। जब एफर्मेशंस करें तो सब चक्रास की करें, ठीक है? क्योंकि अगर कोई चीज पहले से अच्छी है तो वो और बेहतर हो जाएगी, राइट? सो द थर्ड चक्र एवरीवन इज द सोलर प्लेक्सस चक्र। अपनी अपनी नाभि को टच कीजिए, प्लीज टच योर बेली बटन। यस, राइट मंजू मैम, दिस इज योर सोलर प्लेक्सस चक्र, क्योंकि ये सूर्य जैसा पीला है, ठीक है? अभिजीत सर प्लीज वेट फॉर सम टाइम, आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास आई विल टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है जी? सो Actually, you forgot to tell the color and all about it. That's why this is the okay. last time. Thank you. Yeah. Okay, I'll just tell. I thought it's on the screen, so it's clear. So the color of the sacral chakra is orange. Colors आप देख लीजिए, जो कलर आपको दिख रहे हैं, कलर्स हमेशा वही रहेंगे। I apologize. The sacral chakra color is orange. ये संतरिया नारंगी रंग का है। रूट चक्रा मैं बता चुकी थी आपको, लाल रंग का था, ठीक है? अभी हम तीसरे चक्र पे हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुरा चक्र। इट इज येलो इन कलर, ये गहरे पीले रंग का है, जैसा सूर्य होता है, लाइक द सन, ब्राइट येलो इन कलर। ओके, द affirmation for this chakra is that I am motivated to pursue my purpose, कि मैं अपना पर्पस पूरा करने के लिए मोटिवेटेड तो हूं। अब इसमें आगे क्या नहीं लिखा है, क्योंकि एफर्मेशन एक लाइन की होती है, मुझे आपको डिटेल में समझाना है। ये चक्रा कहता है कि जब मैं अपना पर्पस चेज कर रहा हूं, व्हेन आई एम लुकिंग फॉर माय पर्पस, आई एम नॉट लेटिंग अदर्स डाउन। मैं दूसरों को छोटा महसूस नहीं करवाऊंगा, ईगो प्रॉब्लम्स नहीं आने दूंगा। जितने लोगों को भी गॉड कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं भगवान हूं, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं आता, या ईगो इश्यूज, अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिसे कभी ईगो इश्यूज रहे हैं या ईगो इश्यूज हैं, तो आप प्लीज क्लियरली उसके साथ जा सकते हैं कि उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक है। ईगो इश्यूज सिर्फ सोलर प्लेक्सस से नहीं आएंगे, और चक्रास भी इन्वॉल्व हैं, पर ये भी इन्वॉल्व है। जैसे हम कहते हैं ना कि पैरों में बहुत दर्द है, तो हम सीधा नहीं कह देते कि उसको लिवर प्रॉब्लम हो गई है। देयर माइट बी सो मेनी रीजन, सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वेट गेन हो गया है, बहुत सारे चीजें हैं। एकदम से कंक्लूजन नहीं निकालना है, ठीक है? द फोर्थ चक्रा एवरीवन इज योर हार्ट चक्रा। आप अपनी अपनी चेस्ट प्लेट को छुइए, थोड़ा ऊपर मंजू मैम, जहां हमारे पेंडेंट खत्म होता है। यस, अगर हम गले में कोई जैसे पेंडेंट डालते हैं, जहां हमारा पेंडेंट रेस्ट करता है चेस्ट प्लेट पे। यस लियो सर, दिस इज योर हाउ डू वी से, चेस्ट प्लेट, छाती की प्लेट है आपकी ये। बिहाइंड योर चेस्ट प्लेट इज योर हार्ट। आपकी छाती की प्लेट के पीछे आपका दिल है। इट इज नॉट 100% ऑन द लेफ्ट, ये पूरी तरह से लेफ्ट साइड पे नहीं झुका हुआ, 75 to 70% ऑन द लेफ्ट एंड 30% ऑन द राइट। ये कुछ सेंटर से में है। अपनी चेस्ट के बीच में हाथ लगाइए, आपको एक हड्डी महसूस होगी। उस हड्डी के दोनों साइड पे आपकी लंग्स लटक रही हैं रिब केज में। तो ये जो हड्डी है आपकी, दिस बोन in which the lungs are suspended in the rib cage on both sides, this bone is called the sternum. ये जो बोन है इसे स्टर्नम कहते हैं, ठीक है जी? सो इसके पीछे आपका दिल है, ठीक है? बिहाइंड दिस बोन इज योर हार्ट। ओके, सो योर हार्ट चक्रा, व्हाट इज द एफर्मेशन? आई एम ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। मुझे लोगों को प्यार देना भी है, लोगों से प्यार लेना भी है, कंपैशन रखना है, लोगों के लिए सहानुभूति रखनी है। किसी को कुछ समझ अगर नहीं आ रहा है, एक बार में समझाए पर उसे गुस्सा नहीं होना है, उस पे शाउट नहीं करना है, उस पे हंसना नहीं है, उसे छोटा महसूस नहीं कराना है। 4 बार समझाएं, 5 बार समझाएं, फिर भी समझ ना आए, सो यू से यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आप घर जाओ, कल जब आप आओगे दोबारा बात करेंगे। दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस पेशेंस। उषा मैम, पे अटेंशन है, ठीक है? दिस इज हाउ यू यू हैव पेशेंस। गुस्सा सबको आता है, एवरीबडी लूजेस देयर माइंड एट अ पॉइंट। हर किसी का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोई 60 डिग्री पे उबल जाता है, कोई 100 डिग्री, कोई 200 डिग्री तक भी सह जाता है। तो हर इंसान का अपना अपना थ्रेश होल्ड है। थ्रेश होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को सहने की शक्ति, ठीक है? सहन शक्ति। किसी का थ्रेशोल्ड होता है 10%, किसी का होता है 100%। तो अपना अपना थ्रेशोल्ड है।
धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना विद एज, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, बिकॉज विद एज आप इतने लोगों से मिल लेते हैं कि प्रैक्टिस हो जाती है। विद एज यू मीट सो मेनी पीपल दैट यू आर प्रैक्टिस दैट ओके देयर इज नो यूज थिंकिंग मच, छोड़ो वैसे ही, ठीक है। सो द कलर ऑफ द हार्ट चक्रा इज ग्रीन, ओके, द हार्ट चक्रा इज ग्रीन इन कलर. The next chakra, everyone, is the throat chakra. Throat chakra is this. Where is your throat? Yes, this is your throat chakra. You may keep your hands on your throat and take your names. Like I put my hand here and I say Neha. So you all can also put your hands here and take your names. When you take your names, there is a vibration happening. नाम लेते हो तो यहाँ एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है, बारीक सी बहुत, है ना। क्यों यहाँ पर वाइब्रेशन होती है आप सबको? मंजू मैम, हो रहा है महसूस? राइट। सो बाकी सबको भी हो रहा होगा, आई एम श्योर। सो यहाँ क्योंकि हमारा वॉइस बॉक्स है, ये छोटा सा एक हमारी बोलने का वॉइस बॉक्स यहाँ रहता है, जिसे हम साइंस में लैरिंक्स भी कह देते हैं, ठीक है। जहां से आपकी आवाज निकलती है, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो, ये भी वॉइस बॉक्स से ही आ रही है, ठीक है। सो द वॉइस बॉक्स इज सिचुएटेड इन द थ्रोट चक्रा, जिसे हम विशुद्धा चक्रा भी कह देते हैं। इसका रंग होता है हल्का नीला, स्काई ब्लू या आसमानी नीला, ठीक है। सो इट सेज, इसकी एफर्मेशन क्या है? आई स्पीक माई ट्रूथ विद काइंडनेस। मैं अपना सच बोलूंगा या बोलूंगी, बट मिठास के साथ। यू ऑलवेज हैव टू टेल द ट्रूथ, बट बी वेरी वेरी काइंड। देर इज नो नीड टू बी रूड। किसी को कुछ मैम समझ, हु स्पीकिंग, प्लीज क्लोज योर माइक, कीप योर मैम अपने these symbols, ma'am, there's a question. These symbols which are made in front of these colors, do they have any have significance? some patience, then I will teach every symbol when we'll read all the chakras in details. Achha, these like Om and all these things are written, they will be taught later. Ma'am, of course, then why are the 9 classes here for? Please don't break the flow of the class, ma'am. My flow breaks. I am teaching, please don't budge in between. I had written it in the chat, but it was overlooked, so I thought I'll Ma'am, say it before will the be slide overlooked goes on. because I am on screen sharing. I'm not able to see chats when I'm sharing screens. Change and then Please mute okay. yourself. प्लीज डोंट बज इन द क्लास, फिर कुछ छूट जाएगा तब आप बोलेंगे ये नहीं कहा, वो नहीं बताया। प्लीज डू नॉट बज मी इन द क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आई डोंट नो इट्स योर फर्स्ट क्लास और नॉट। पिछली क्लास में भी लोगों ने क्वेश्चंस लिख दिए थे। बिफोर आई वाइंड अप द क्लास, आई टेक ऑल क्वेश्चंस, योर ऑल क्वेश्चंस विल बी टॉट। क्लास से आगे ना भागें। अगर मैंने ये सिंबल्स नहीं बताए तो मतलब अभी उनका समय नहीं आया बताने का। क्लास में ए से एप्पल बनाया होता है, पर पहले ए लिखना सिखाया जाता है, फिर हम एप्पल की स्पेलिंग सीखते हैं, क्योंकि हम पी भी लिखना सीखते हैं, एल भी और ई भी। आज ही मैं आपको ये बोलना शुरू कर दूं, इतना कुछ आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। आई हैव डिजाइंड द करिकुलम, बी स्लो एंड इजी, डोंट रन। जल्दी भागेंगे कहीं नहीं पहुंचेंगे। we'll all move together, we'll reach faster, okay? So just relax, we will do everything in details. मेरी तरफ से कुछ नहीं बचेगा, मैं सब कुछ बहुत डिटेल्स में कराने वाली हूँ। 9 क्लासेस का मतलब ही ये है कि कुछ छोड़ा ना जाए, ठीक है। थोड़ा पेशेंस, बस पेशेंस रखिए, ठीक है। क्वेश्चंस पूछिए, चैट बॉक्स में लिख दो, बिना आंसर किए मैं क्लास एंड ही नहीं करूंगी। डोंट वरी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज योर मेंटोर, ठीक है। सो वेयर वॉज आई व्हेन मैम स्टार्टेड स्पीकिंग? Abhijit sir, can you please reconnect me? Where was I? Throat Yeah, chakra. you just happen to tell about the sky blue color of the throat Yes, chakra. sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So I was at the throat chakra. The color is sky blue. So you have to speak your truth. Yes, but with kindness. आपको अपनी बात कहनी है, but शांति के साथ कहनी है। आपको किसी को कहना है यहाँ से चले जाओ, सो आप उसे ऐसा नहीं कहेंगे, दफा हो जाइए, कमरे से बाहर निकलो, तुम इरिटेटिंग हो, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे साथ बैठने से मेरा सिर दुखता है, नहीं, नो, ठीक है। हाउ वी आर गोइंग टू टॉक टू द पर्सन? वी आर गोइंग टू से, आपकी एंड मेरी एनर्जी मैच नहीं कर रही, मे बी आवर एनर्जीज आर नॉट मैचिंग, राइट? और मे बी यू नीड टू रिलैक्स अ बिट, आपको थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। थोड़ी देर के बाद मे बी आपकी और मेरी एनर्जी मैच कर जाए, या फिर वील मीट आफ्टर 2 days। मे बी आज मेरा मूड इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपकी बात समझ पाऊं, तो 2 दिन के बाद मिलते हैं, आराम से बात करते हैं। देखिए, आप जितना कड़वा बोलते जाएंगे ना, आपको स्टर्न होना है अपनी बात में,
रूड नहीं होना। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्टर्न एंड बीइंग रूड। बीइंग स्टर्न होता है लाइक अ टीचर टेल्स यू इन द क्लास, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब चुप रहेंगे, फिंगर ऑन योर लिप्स, ये होता है स्टर्न होना। व्हाट इज रूड? आई स्लैप यू इन द फेस, अगर आप बोले, जो छोटे बच्चों को टीचर्स बोल देती है कि आपको थप्पड़ लगा देंगे, आपको पनिशमेंट दे देंगे। हमें ये काम नहीं करने हैं, बिकॉज अगर आप किसी के साथ रूड होंगे, इवेंचुअली आपका थ्रोट चक्रा जैम होने वाला है। और जितने लोगों की भी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, थ्रोट चक्रा जैम्ड है, फिर थ्रोट चक्रा रिलेटेड बीमारियां आ जाती हैं। अभी प्लीज ये चीज फायर अप मत कर देना मैम, वो क्या बीमारियां होती हैं अभी बता दो। लियो सर प्लीज डोंट टच योर स्क्रीन, इट्स अगेन एंड अगेन गेटिंग अनम्यूटेड, प्लीज डोंट। ओके, थैंक यू। सो सब चक्रास हम डिटेल में करने वाले हैं, तो वहां पर मैं हर प्रॉब्लम, हर सिंबल, सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वहां पर हम उसको करेंगे। यहाँ हम अभी सिर्फ एफर्मेशंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो आपका थ्रोट चक्रा कहता है मुझे अपना सच कहना है काइंडनेस के साथ। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट क्या है, आपने कभी किसी की बटरिंग नहीं करनी। होता है नाराज हो जाए, बोलेंगे हम सच, जो मेरा पॉइंट है मुझे वो रखना है। मैंने जेंटली बोल दिया है, आपको बुरा लग रहा है, आपको उसको उस तरीके से सुनना था, दैट इज नन ऑफ माय कंसर्न। मुझे आपको ये इंफॉर्मेशन रिले करनी थी कि बाहर बारिश हो रही है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको खुद सोचना है कि आपके कपड़े बाहर हैं, आपका कोई व्हीकल पार्क्ड है, उसे अंदर आप करेंगे। आप मेरे साथ लड़ाई नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं कहा बारिश हो रही है, गाड़ी अंदर कर लो, दैट इज नन ऑफ माई कंसर्न्स। आपका खुद का भी एक ब्रेन है, हमें उसे भी काम पे लगाना है। यहाँ किसी की बटरिंग नहीं करनी है, बारिश हो रही है गाड़ी अंदर कर लीजिए, खराब हो जाएगी। कई बार लोग, हम में से 90% लोग पीपल प्लीजिंग करने लग जाते हैं। इतनी ज्यादा पीपल प्लीजिंग की हमें आदत हो जाती है, हमें रियलाइज भी नहीं होता। हम पीछे 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 लोगों के चलते रहते हैं कि वो खुश हो जाएंगे, मेरे इतने से एक्स्ट्रा एफर्ट से खुश हो जाएंगे, बट पीपल आर गेट नेवर हैप्पियर। लोग खुश नहीं होते हैं, ठीक है। बिकॉज देखिए, आप इतने सारे लोगों में से इतने से हैंडफुल लोग इस क्लास में आए हैं, उसमें से भी एक हैंडफुल बंच क्लासेस को अटेंड करेगा, ठीक है, या प्रैक्टिस करेगा। सो आप लोगों में एक वो जील थी कि मुझे खुद को चेंज करना है, तो आप हो जाएंगे, ठीक है। सो पर हर एक के अंदर वो जील नहीं है, हर एक के अंदर वो एक एनलाइटनमेंट नहीं है, तो सबसे एक्सपेक्ट मत करो, बट आप मीठे रहो और अच्छे से रहो, ठीक है। नाउ एवरीवन, दिस इज योर थर्ड आई चक्रा, यू माइट टच बिटवीन योर आईब्राउज, ओके, दिस इज योर थर्ड आई चक्रा। आपकी आईब्राउज के बीच में आपका थर्ड आई चक्रा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आज्ञा चक्रा, अजना चक्रा, या थर्ड आई चक्रा। 4 नाम है इसके, कोई भी ले लो। अजना चक्रा कहना चाहते हो, आज्ञा चक्रा कहना चाहते हो, थर्ड आई चक्रा कहना चाहते हो, या ब्राउ चक्रा, क्योंकि आईब्राउज के बीच में है। ओके, सो यू कैन यूज एनी वर्ड। इट सेज आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड लेट इट गाइड मी। आप कहते हो कि मेरी इंट्यूशन पे पूरा भरोसा है और मैं इस पे चलूंगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आपको पहले से पता होता है आज ये काम खराब हो जाएगा, इसे नहीं करते, स्टिल यू इग्नोर योर गट फीलिंग, है ना। आप अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करते हो और वो काम आप करते हो, फिर वो काम नहीं होता है, देन आप कहते हो अरे यार मुझे तो पहले से ही पता था, फिर भी मैंने कर लिया, अब क्या होगा, अब मेरा सारा कुछ बिगड़ गया। या फिर हमारा एक और जो प्रॉब्लम है, जो मैंने अभी आपको बताया था, हमारा जब से चक्रा ब्लॉक होता है तो हम दूसरे सेक्रल चक्र दूसरे लोगों पे गलतियां निकालने लगते हैं। पता नहीं सुबह किसका चेहरा देखा था, जिसका चेहरा देखा तभी से ही मेरा दिन खराब हो गया। हम अपना एफर्ट सोचते ही नहीं, हमने काम, जब हमें कट फीलिंग आ रही थी that I don't have to do this job, we still did. So when your third eye chakra gets activated, जब आप प्रैक्टिस के साथ चक्रास को पढ़ेंगे, पॉइंट्स को सीखेंगे, ये क्लासेस खत्म होंगी, उसके बाद अपनी 21 डेज की प्रैक्टिस करेंगे, ओवर द टाइम आप रियलाइज करेंगे कि आपका ये चक्रा एक्टिवेट होगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आपकी थिंकिंग बदलती है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, एंड आप बेटर डिसीजन मेकिंग करते हो। पर ये सबके साथ नहीं होगा, होगा उन्हीं के साथ जो प्रैक्टिस रखेंगे। पढ़ने से रेके नहीं आएगी, रेके करने से आएगी, ठीक है। सो लास्ट, नाउ द कलर ऑफ दिस इज इंडिगो, गहरा नीला। आप सबने उजाला नील देखा है, कपड़ों को दिया जाता है, दैट इज द कलर ऑफ द थर्ड आई चक्रा, गहरा नीला या इंडिगो कलर। नाउ द लास्ट चक्रा एवरीवन, टॉप ऑफ योर हेड, दिस प्लेस, यू माइट टच इट,
This top of your head is your crown chakra. This is the Sahasrar. Sahasrar is divine. It says I am light, I am infinite. कि मैं एक light का being हूँ. देखिए, आप सब इस क्लास में हैं. You all are learning light work. अगर आप कल को कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं, ठीक है, आपको कोई पूछता है आप क्या करते हो, तो आप ये कह सकते हैं दैट आई एम अ लाइट वर्कर, क्योंकि आप लाइट के साथ काम करते हो. एनर्जीज लाइट ही है, आपकी जिंदगी में वो उजाला ही करती हैं. दे ब्रिंग लाइट टू योर लाइफ बिकॉज एनर्जीज ब्रिंग a lot of happy light into your life. So you can always use the word that I am a light worker. अगर आपको ये बोलना अच्छा नहीं लगता ना that I am a healer, I am a Reiki healer, I am a Reiki practitioner. See, there are places where you need to use better words. नॉर्मल सी जगह खड़े हो बोल सकते हो आई एम अ रेके हीलर, ओके, आई प्रैक्टिस रेके. पर कई जगह ऐसी होती हैं, देयर आर वेरी लर्नड पीपल स्टैंडिंग ओवर देयर यूजिंग वेरी हेफ्टी वर्ड्स. So if you want to, make a presence, make your mark, you can say, I am a light worker, that I work with light. I channelize light into my hands in the form of energy. मैं ऊर्जा को, लाइट को अपने अंदर ऊर्जा के रूप में हाथों में बुलाता हूँ या बुलाती हूँ, एंड देन आई हील पीपल, और फिर मैं लोगों की हीलिंग करता हूँ. ठीक है जी. अगर इसको रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया है, प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना. जब मैं वापस आ रही हूँ आई विल आंसर. ठीक है. द हिंदी नेम फॉर द क्राउन चक्रा इज सहस्रार. मैं आपको ओवर द नेक्स्ट 3 क्लासेस, आज की क्लास में हम रूट चक्रा कर लेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में 3 चक्रास और करेंगे, और उसकी नेक्स्ट क्लास में 3 चक्रास और करेंगे, यानी कि 2 मोर क्लासेस तक मैं आपको हर चक्रा के ऑलमोस्ट 7 to 10 एफर्मेशंस दूंगी. बट आपको 7 to 10 एफर्मेशंस नहीं करने होते, आपको सिर्फ एक एफर्मेशन करना होता है पर चक्रा. मैं आपको, मान लीजिए, मंडे को पहनने के लिए 10 कपड़े रख रही हूँ, पर आपने उसमें से पहनना एक ही है, वो आपकी मर्जी है कौन सा पहनना चाहते हो. फिर ट्यूसडे के लिए अलग 10 कपड़े हैं. तो वैसे ही ये जो आप अपनी स्क्रीन पे 7 एफर्मेशंस देख रहे हो, अगर आप फॉर लाइफ हर चक्रा की सिर्फ ये एफर्मेशंस ही बोलना चाहते हो, यू मे गो अहेड विद इट, इट इज वेरी गुड. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. ओके, सो the 7 main chakras are here on your screens. चक्रास कभी भी ऊपर से नीचे नहीं पढ़े जाते, चक्रास हमेशा नीचे से ऊपर पढ़े जाते हैं. चक्रास आर नेवर read from top to bottom, चक्रास आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ठीक है. सो भारती मैम, कैन वी प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास? थैंक यू. ओके, so we are going with the 7 chakras. ठीक है. हम the class is getting recorded, ma'am. I hope you understand. आपके लिए बाद में थोड़ा uncomfortable हो जाएगा. So I'm just saying for your sake. Okay. So these are the 7 chakras. ठीक है. हम इनको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं. 7 चक्र नीचे से ऊपर चलेंगे. So the first चक्रा, जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में भी किया था, देखिए, द रूट चक्रा, सबसे नीचे वाला, मूल आधार. ठीक है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट चक्रा? दिस इज योर रूट चक्रा. ओके. रूट चक्रा आपको देता है इंस्टिंक्ट. इंस्टिंक्ट होता है आपके अंदर की एक गट फीलिंग. आपने एक छोटा बच्चा देखा, यू ऑल हैव सीन अ स्मॉल बेबी, 1 साल का, 1.5 साल का. आप इधर एक शेर खड़ा कर दो, इधर उसकी मदर खड़ा कर दो, वो बच्चा शेर की तरफ पहले जाएगा. उसको फैसिनेटिंग लगता है ना, वो क्या है, उसको डर नहीं होता, उसको फियर नहीं होता. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को इंस्टिंक्ट होता है, उसको शेर दिखेगा वो पहले दूसरी साइड भागेगा. दैट इज टू सेव योर लाइफ. दीज आर योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, राइट? ओके. सो रूट चक्रा आपको इंस्टिंक्ट देता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देता है कि आप घबराएं ना, आप स्टेबल रहें, हैप्पी रहें और बैलेंस्ड रहें. जिन लोगों के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स वीक होते हैं, रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है, तो इंस्टिंक्ट भी चला जाता है. गलत डिसीजंस लेते रहते हैं ये लोग. हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, मैम हम तो बहुत लोनली हो गए, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, अगर मैंने किसी को समझाने की कोशिश भी की तो उसने कौन सा मेरी हेल्प कर दी, उन्होंने तो मेरा मजाक ही उड़ाया. ये वही लोग हैं जिनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है.
ठीक है। उसके बाद जो अगला चक्र है दैट इज होल्डिंग इमोशंस, वही आपका सेक्रल चक्र, जो आपका बेली बटन से नीचे 2 उंगली नीचे, जहां आप अपनी बेल्ट का बटन या बकल बांधते हैं, सेक्रल चक्र रखता है इमोशंस। इमोशंस क्या कहते हैं? हम क्रिएटिव रहेंगे, हम कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, हम अपनी इमोशनल और सेंसुअल नीड्स को सी अपॉन करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। सो आप अपनी सेक्सुअलिटी पे वर्क करते हैं, आप अपनी अपीयरेंस पे काम करते हैं, आप काम करते हैं कि आप कितने अच्छे दिखते हैं और दूसरे को कैसे अच्छा महसूस करवाते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। किसी को छोटा महसूस नहीं कराना है, कॉम्प्लीमेंट देना है, और कॉम्प्लीमेंट झूठा ना हो। कोई सच में अच्छा लग रहा है तभी कहिए, वरना थ्रोट चक्रा खराब हो जाएगा, बटरिंग नहीं करनी है। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिबरेट योर सेक्रल चक्रा। देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक गुड। मैं हमेशा बताती हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग में देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्टिविटी विच दे डू इन देयर हैप्पीनेस प्रोग्राम, उसे कहते हैं उपनयन। मैंने वो 2 बार किया है ये प्रोग्राम, सो बोथ टाइम्स आई हैव हैड द सिमिलर एक्सपीरियंस। उपनयन क्या होता है? उपनयन इज लाइक आपके सामने किसी को बिठा दिया जाता है, टोटल स्ट्रेंजर, जैसे भारती मैम मेरे साथ बैठ जाए, मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, ठीक है, हम एक दूसरे को बस फर्स्ट नेम बेसिस पे जानते हैं। सो वी विल सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे के सामने बैठेंगे, वो मेरा हाथ पकड़ेंगी, जैसे विल होल्ड ईच अदर्स हैंड्स, हम जमीन पे पालथी मारकर बैठेंगे, विल सिट ऑन द ग्राउंड क्रॉसिंग आवर लेग्स, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स, एंड विल स्टार्ट लुकिंग इन ईच अदर आईज। हम एक दूसरे की आंखों में देखना शुरू करेंगे। पहले 2 मिनट बहुत हंसी आती है, इट्स वेरी फनी फॉर द फर्स्ट 2 मिनट्स, क्या है ना, क्या मैं नेहा मैम की आंखों में देख रही हूँ, अरे क्या मैं मुझे भारती की आंखों में देखना पड़ रहा है। आफ्टर 2 मिनट्स ये फेस गायब हो जाता है, you stop looking at the face, then you only see the eyes of the person। फिर सिर्फ आंखों पे ध्यान जाता है, फिर आपको आंखों में पेन दिखाई देती है कि इसको दिक्कतें कहाँ है। वो बहुत हंसता हुआ इंसान हो सकता है, आप रियलिटी बता रही हूँ, आप यकीन मानिए, प्लीज बिलीव मी, मैंने 2 बारी किया है एंड दोनों टाइम आई हैव क्राइड, मैं रोई हूँ, क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको प्रॉब्लम्स ना हो। तभी मैंने उषा मैम से भी कहा था और सुखदीप जी से भी कहा था कि क्लास में अपनी प्रॉब्लम्स ना लिखें, यहाँ सब लोग ना पॉजिटिविटी के लिए आते हैं। अगर अभी हम कैमरा माइक ऑन कर लें और बैठ जाएं प्रॉब्लम्स शेयर करने, तो मुझे लगता है कल दोपहर हो जाएगी, हमारी प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं होंगी, रादर किसी की सुनने से हमें एक और याद आ जाएगी, अच्छा ये भी तो थी, ये तो मैंने बताई ही नहीं। ठीक है। सो हमें पॉजिटिव साइड पे जाना है, नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है। ठीक है। सो अपने इमोशंस के लिए ना वहां पर उपनयन कराया जाता है कि आप लोगों की पेन देख पाओ, यू सी बियॉन्ड द फेसेस। बट उसके लिए भी पहले फेस देखना पड़ता है। देखिए, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गिमिकी टॉक्स, मुझे आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लगी, दिल बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने आपसे बात कर ली। नो, पीपल विल ऑलवेज लुक एट यू फर्स्ट, हाउ यू लुक, योर अपीयरेंस, फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, चाहे पहले 5 मिनट ही सही। आप इंटेलेक्चुअली लेट डॉक्टर एपीजे कलाम जैसे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, दिमाग आपका उतना हो सकता है, बट अगर आप साफ सुथरे नहीं है, आप अच्छे से खड़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, ड्रूल कर रहे हैं, आप गिर रहे हैं, आपके बाल अच्छे नहीं है, आप स्टिंक कर रहे हैं, आपसे स्मेल आ रही है, चाहे आपको डॉक्टर एपीजे कलाम जी सर जितनी नॉलेज हो, आपके पास कोई बात करने नहीं आएगा। किसी को आपकी पर्सनालिटी से, आपके दिल से कोई लेना देना नहीं है। आप क्लीन है, यू आर लुकिंग प्रेजेंटेबल, you have knowledge, then people start liking you more and more and more। ये चीजें हमें सीखनी है। ये सब चीजें इधर उधर की फॉरवर्डेड मैसेजेस, व्हाट्सएप इमोशंस नहीं है यहाँ पर। दिल देखिए, चेहरा ना देखिए, नहीं। आप पहले किसी का चेहरा देखते हैं, उससे 5 मिनट बात करते हैं, फिर आप रियलाइज करते हैं दैट बाय हार्ट दिस पर्सन इज अ जेम, ये दिल का हीरा है, अब मैं इससे और बात करूं। सो योर अपीयरेंस विल ऑलवेज डिसाइड योर फ्रेंड सर्कल। आप खुद जैसे हो वैसे ही दोस्त आपको मिलते हैं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, आप दोस्त भी वैसे ही बनाओगे, शैबी दिखने वाले, क्योंकि आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा ना, ये भी तो तैयार नहीं होता, ये भी तो अपने लिए कुछ नहीं करता, मुझे भी नहीं करने की जरूरत। अगर आप खुद तैयार हो रहे हो, आपके दोस्त भी वैसे ही होंगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, आपके फ्रेंड्स भी वैसे एक्स्ट्रा एफर्ट वाले होंगे। अब कॉलिंग आपकी है, आपने कौन सी साइड चूज करनी है अपने चक्रा को ओपन करने के लिए। ठीक है।
देन इज द एनर्जी, आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है। तीसरा चक्र हमने नाभि चक्र किया था, ठीक है, जहां से हम अपना गॉड कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, विच इज येलो इन कलर। ये आपको एनर्जी देता है। सूर्य का क्या काम है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सन ऑन दिस अर्थ? रोज सुबह निकलकर शाम को डूबना उसका काम नहीं है। द पर्पज ऑफ द सन इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द होल प्लैनेट। सूर्य है तो हम हैं। इफ द सन इज देयर वी आर हियर, अदरवाइज वी वोंट सर्वाइव। क्यों नहीं कर पाएंगे सर्वाइव? क्योंकि देखिए, अगर सूर्य ही नहीं होगा, इफ देर इज नो सन, देर इज नो फोटोसिंथेसिस डन बाय प्लांट्स। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। When there is no photosynthesis done by the plants, then what is going to happen? No chlorophyll is being made. हरे पत्ते वगैरह बनेंगे ही नहीं। जब वो चीजें नहीं बनेंगी तो प्लांट्स खाना कहाँ से बनाएंगे? खाना नहीं बनाएंगे। when the plants won't cook food, they won't give oxygen. ऑक्सीजन ही नहीं आएगी, सांस कैसे लेंगे हम? We'll all perish, खत्म हो जाएगा प्लैनेट अर्थ। पेड़ पौधे भी सड़ जाएंगे, जानवर भी मर जाएंगे, इंसान भी मर जाएंगे। तो वैसे ही जैसे सूर्य इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, सिमिलरली आपकी बॉडी में भी, इन योर बॉडी ऑल्सो, द सोलर प्लेक्सस चक्र गिव्स यू द एनर्जी। जितना अच्छा आपका नाभि चक्र चलता है, उतने अच्छे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स चलते हैं, ठीक है, उतने अच्छे आपके गैस्ट्रिक सिस्टम्स वर्क करते हैं, उतने आप एनर्जेटिक रहते हो। जितना आपका गट फ्लोरा, आजकल पेट को साइंटिस्ट गट कहते हैं, जितना आपका गट फ्लोरा यानी आपके पेट के अंदर का जो भी माइक्रोबियल सिस्टम है, एंटी माइक्रोबियल सिस्टम है, खराब होगा, उतना ज्यादा आपका मूड भी खराब रहता है, स्किन भी खराब हो जाती है, हार्मोनल इश्यूज भी खड़े हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस भी हो जाता है, सब कुछ रिलेटेड है, ठीक है। नाउ कम्स द हार्ट चक्र, आपका दिल, ठीक है, आपकी चेस्ट प्लेट के पीछे, आपका फोर्थ चक्र स्टर्नम बोन के पीछे है जो छाती में, दैट इज द हार्ट चक्र। इसका काम सिर्फ एक ही है, लव एंड कंपैशन। देखिए, आजकल कोई किसी को पेन की कैप भी फ्री में नहीं देता। लोग पेन देते हैं ना आपको साइन करने के लिए, कैप अपने पास रख लेते हैं कि बिना कैप की तो पेन लेके नहीं जाएगा, खराब ही हो जाएगा, तो इसको वापस करना पड़ेगा। कैप पकड़ के बैठे रहते हैं। आप सोचिए, लोग अपने पेन की कैप नहीं देते हैं, आप लोगों को कितने लंबे समय तक अपने दिल में रखते हैं। हमारा समय आएगा, आई विल टेक माई रिवेंज, व्हेन द टाइम विल कम आई विल टेक माई वेंजेंस। नफरत रखी, हेट्रेड रखी, कोई फायदा नहीं है। हार्ट चक्र कैल्सिफाई हो जाएगा। जैसे अपने अपने दांतों को देखिए, टच कीजिए अपनी जुबान से, प्लीज टच योर टीथ विथ योर टंग। हुआ? हार्ड है ना? वैसे ही हमारी बोन्स कितनी हार्ड होती हैं, हड्डियां। हमारी बॉडी में बोन्स एंड द टीथ आर कैल्सिफाइड, कैल्शियम के बने हैं। वैसे ही हार्ट जो एक मसल है, स्ट्रॉन्ग मसल है, बट वो कैल्सिफाई नहीं हो सकता। वो पत्थर जैसा हो जाएगा तो वो धड़केगा कैसे? ये जो उसकी लब डब मोशन है, ये कैसे होगी? सो उसकी कैल्सिफिकेशन हो गई तो हार्ट इश्यूज खड़े हो जाएंगे। उसकी कैल्सिफिकेशन कब होती है? जब आप हेट्रेड, वेंजेंस, रिवेंज यानी नफरत, बदले की भावना, या फिर किसी के लिए बहुत ज्यादा अपने अंदर कड़वाहट रखते हैं। तो लेट गो कीजिए लोगों को। आई अंडरस्टैंड इट इज बेटर, सेड दैट डन, इजियर सेड देन डन, कि हाँ मैम आपने तो कह दिया, आपको नहीं पता मेरे साथ हुआ क्या है 20 साल 10 साल। आई अंडरस्टैंड, सबकी अपनी जर्नी होती है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूं आप उन्हें भूल जाओ, ठीक है। एवरीवन प्लीज मेरी इस बात पे ध्यान देना। आप फॉरगिव मत कीजिए, फॉरगिव कीजिए सॉरी, बट फॉरगेट मत कीजिए। आपके साथ मान लीजिए मैंने गलत किया है, आप मुझे माफ कर दीजिए कि ओके नेहा गो, आई फॉरगिव यू, मेरे को दिखना नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आना, बट याद रखिए मैंने क्या किया है, बिना कड़वाहट के, ठीक है। ताकि अगली बार अगर मैं दोबारा आपके साथ फ्रेंड्स बनना चाहूं तो आपको पता हो कि 1 हैंड डिस्टेंस पे रखना है, इसकी फितरत है, ये गड़बड़ कर देती है। तभी मैंने कहा था कि हम ह्यूमंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, 2 बातें बोलने से हम नेगेटिव नहीं हो जाते। तो अगर आप अपने दिल में ये रख लेते हैं कि ठीक है, आई हैव फॉरगिवन हर बट आई विल नॉट फॉरगेट व्हाट शी डिड विद मी, दैट मेक्स अस मैच्योर। बच्चे नहीं हैं हम, राइट? कि हाँ अपने आप को पॉजिटिव पॉजिटिव करूंगा तभी पॉजिटिव बनूंगा, अगर एक भी थॉट नेगेटिव आ गया तो मैं तो बीमार हो जाऊंगा। नहीं, लाइफ में ट्रिगर्स कभी खत्म नहीं होंगे। आई ऑलवेज से इन माई क्लासेस, रेकी डजंट मीन कि आपकी जिंदगी से तकलीफें चली जाएंगी। रेके मीन्स प्रॉब्लम्स विल कम बट यू विल कम आउट ऑफ देम वेरी फास्ट।
Like I was hospitalized in July. I still remember I had a very bad time, right? I was about to have a very complex surgery. Something all went bad. I was expecting nothing was going fine. And 2 days I was in the hospital. I came home, everything was okay. एंड डॉक्टर सेज अगर कोई और होता तो शायद हम 15 दिन भी रखते, बिकॉज आई डू माई हीलिंग, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इसका ये मतलब नहीं है मैं हीलर हूं तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं हीलर हूं तो मैं बीमार नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता है। तभी मैं कहती हूँ होल्ड द हैंड्स ऑफ रियलिटी। अपनी जो जिंदगी का सच है ना उसका हाथ ना छोड़ें। सब कुछ बाद में है, जो आप लाइफ जी रहे हो वो सबसे पहले है। देखो ट्रिगर्स रोज आएंगे, सुबह किसी के कपड़ों पर कुछ गिर जाएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यही शर्ट पहननी थी, ट्रिगर्स तो रहेंगे। आप अपने चक्रास पे इतना अच्छा बैलेंस पा जाओगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप कहोगे कोई बात नहीं यार, अब जो हो गया, आई गेट इट द अनदर शर्ट, आई गेट वियर समथिंग एल्स, मुझे बोलना तो गले से है, आई मैनेज, मैं लोगों को इसी से इम्प्रेस कर लूंगा या कर लूंगी। ये कब होता है? जब चक्रास पे कंट्रोल होता है। जब कंट्रोल नहीं होता यू लूज एवरीथिंग। अरे मेरी शर्ट खराब कर दी, अब तो मेरी जॉब चली जाएगी, मैं तो इम्प्रेस। शर्ट से जॉब किसी की नहीं जा सकती। हाँ 2 मिनट के लिए लोगों को लग सकता है ये क्या पहना है, बट द मोमेंट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, वो फिर सिर्फ सुनने ही वाले हैं। उसके लिए थ्रोट चक्र अच्छा होना चाहिए, कपड़ा नहीं। डिसीजन आपने लेना है, ध्यान आपने रखना है अपने चक्रास का। हर चक्र जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैम मेरा नीचे का चक्र बंद है ऊपर के चल रहे हैं, हो ही नहीं सकता। नीचे बंद है तो ऊपर भी एनर्जी पूरी नहीं आ रही, ठीक है ना कुछ फ्लिकरिंग होगी। अभी दिख नहीं रही है, कुछ टाइम में दिख जाएगी, पर फ्लिकरिंग होगी जरूर, ठीक है। सो द नेक्स्ट चक्र इज द थ्रोट चक्र, जो मैंने आपको बताया पीछे भी, स्काई ब्लू इन कलर। विशुद्धा चक्र, ये आपका गला, जहां आपका वॉइस बॉक्स है। यहाँ आप ट्रूथ को बोलते हैं, आप बोलते हैं अपना सच। आप अपना सच बोलिए। देखिए अब बड़ी एक सेइंग है, मुहावरे हैं, सच कड़वा होता है, जरूरी नहीं है। सच कड़वा होता है बट देर इज अ वे टू से थिंग्स। अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा है, मान लीजिए आपको मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है जो मैंने पहना है, आप मुझे ये ना कहें कि मैम आप बहुत बदसूरत लग रहे हो, यू लुक सो अगली नेहा। नो, देर आर बेटर वे टू से थिंग्स। यू कैन से दिस इज नॉट योर कलर, ये कलर आप पे सूट नहीं कर रहा, आप कुछ और पहनो वो बहुत अच्छा लगेगा। यू कैन से दिस इज नॉट ब्रिंगिंग द कलर ऑफ योर आईज आउट, मतलब आपकी आंखें इतनी अच्छी हैं, ये कलर पहन के तो आपकी आंखें दब गई। देखिए सामने वाला इंसान अगली बार डबल एफर्ट से अच्छा तैयार भी होके आएगा और आपकी बात भी सुन लेगा। देयर आर वे टू से थिंग्स। आप जब रेके सीखते हो ना, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये टैरो नहीं है, ठीक है ना, ये न्यूमरोलॉजी नहीं है कि कैलकुलेटर खोल लिया, एक डाउनलोड कर ली ऐप, वहां से कुंडली बन गई, या फिर वो कार्ड्स का डेक बिछा दिया, नहीं। यहाँ सब कुछ प्रैक्टिस से करोगे आप, ठीक है। अपने बिहेवियरल पैटर्न्स पे जब तक कंट्रोल नहीं पाओगे, एनर्जी फ्लो नहीं होगी, फंसती रहेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। चाहे पूरा दिन सब अच्छा चल रहा है और शाम को लड़ाई कर लेते हो घर पे आके या कहीं ऑफिस में या किसी फ्रेंड के साथ, तो चक्रा इम्बैलेंस हो ही जाएगा, फिर नहीं कर पाएंगे हम हीलिंग, ठीक है। देन कम्स इंट्यूशन। इंट्यूशन आती है ये थर्ड आई चक्रा से, जहां आपकी तीसरी आंख है, दोनों आईब्राउज के बीच में इज द थर्ड आई चक्रा। यू गेट इंट्यूशन फ्रॉम हियर। सारी की सारी इंट्यूशन, सारी की सारी मेंटल क्लैरिटी यहीं से आती है। जिन लोगों को ब्रेन फॉग रहता है ना, दिमागी धुंधलाहट, पता है सुबह ये काम करूंगा तो मेरा काम खराब होगा, फिर कर देना है और फिर रोना है, पता है सुबह उठकर ये काम पूरा नहीं होगा, रात को टीवी मत देखो, कर लो, नहीं करा, सुबह कर लेंगे और सुबह नहीं हुआ, अब पछता रहे हैं, अरे यार रात को 15 मिनट लगा दिए होते तो हो जाता। ये वो लोग हैं जिनका ये चक्रा ब्लॉक्ड है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। इनको दिखता है, फार साइटेड अप्रोच बहुत अच्छी है, इनको दिखता है काम खराब होने वाला है, बट उसको ठीक ही नहीं कर पाते। ओके, देन इज द कनेक्शन चक्र, दिस टॉप ऑफ योर हेड, दिस इज पर्पल वॉयलेट इन कलर, सहस्रारा चक्र। ये कनेक्शन बनाता है आपका, आई एम डिवाइन, आई एम लाइट, जो मैंने आपको लाइट वर्कर वाला पॉइंट बताया था। जब तक नीचे के सारे चक्र नहीं खुलेंगे, ये नहीं खुलेगा, ये ओपन नहीं होगा। हो सकता है किसी किसी का वाइब्रेट कर रहा हो, जिसको कभी पर्पल कलर वगैरह दिखता हो, इट माइट वाइब्रेट बट इट विल नेवर ओपन अंटिल योर 6 चक्रास आर इन द बिलो 6 चक्रास आर इन ऑर्डर। क्योंकि नीचे से देखिए, ध्यान से देखिए प्लीज ऑन द स्क्रीन्स एवरीवन। अभिजीत सर नोट्स छोड़ दीजिए,
प्लीज लुक एट द स्क्रीन। देखिए ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ। नीचे से एनर्जी बॉडी में एंटर करती है, ऊपर आती है और फिर यहाँ से वापस नीचे जाती है, फिर ऐसे घूमती रहती है मैग्नेट की तरह। ऐसे आप मैग्नेट बनते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है, कहीं बीच में फंस जाएगी तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। जब यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, यहाँ से बाहर ही नहीं निकलेगी। जब बाहर ही नहीं निकलेगी तो मैग्नेट कैसे बनेंगे? हमें मैग्नेटिक ऑरा बनाना है जो बढ़ता ही चला जाए। ये बात नहीं कहनी है कभी कि मैम मेरा ऑरा लॉक कर दो। ऑरा लॉक क्यों करेंगे हम? हमें ऑरा बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है ऑरा। राइट? आपके पास 2 करोड़ की लॉटरी आई। अब आप क्या बोलते हो, बस अब ये 2 ही करोड़ रह जाए? बड़े नहीं, आप सबसे पहले उसकी म्यूचुअल फंड्स यहाँ वहां इन्वेस्टमेंट करोगे कि मुझे 2 का 10 करना है। कौन बोलता है 2 पे ही रुक जाऊं? राइट? सिमिलरली अगर आपका ऑरा बॉडी के इतना बाहर आ गया है, आपका गोल होना चाहिए कि इतना आ जाए, अब रूम से भी बड़ा हो जाए। इतना बड़ा ऑरा हो कि कोई आपकी सोसाइटी में एंटर करे, उसे गेट से पता चले कि यहाँ कोई पता नहीं कौन रहता है यार, यहाँ आते ही सब पॉजिटिव हो जाता है। आप तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, यू गो टू पिलग्रिमेज प्लेसेस, राइट? जैसे वैष्णो देवी और कुछ भी, जिस रिलीजन का जो भी है, जो भी जहां भी जाता है। सो आपको क्या आपने नोटिस किया, जैसे ही आप एंटर करते हो वो जगह, आपको लगता है ना सारे दुख खत्म हो गए, इट इज वेरी पॉजिटिव हियर, अब मेरा सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब भगवान देख लेगा। ये जो शांति है, क्योंकि उस जगह का ऑरा इतना बढ़ चुका है लोगों के ट्रस्ट की वजह से, सब लोग वहां पर आके ट्रस्ट कर रहे हैं। सो ऑरा बढ़ाने के लिए ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसी बातें करोगे अपने साथ, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आएगी, क्या ही ऑरा बन जाएगा, ये तो कुछ है ही नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है? आई टेल वन थिंग इन माई एवरी क्लास, we all are looking for miracles but we don't believe in magic। आपको सबको ना अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जादुई इलाज तो चाहिए, पर जादू में कोई विश्वास नहीं करता। चमत्कार तो कर दो मैम, मुझे ठीक तो कर दो, ठीक है, पर आपके पास उसका कोई आंसर नहीं है कि कैसे कैसे सही करो। गॉट इट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू ट्रस्ट समबडी। फेथ रखना बहुत जरूरी है। आपके सामने भगवान भी आ जाए तो 90% लोग बोलते हैं गुम होके दिखाओ, गायब होके दिखाओ। यही है ना, क्योंकि हमने दिमाग में ये बना लिया जो भगवान होता है वो गायब हो जाता है। क्या पता हमारे बीच में ही घूमता है, उसे गायब होना ही नहीं है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं जो गायब हो जाता हो। वैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अपने ना ब्रेन को फ्लेक्सिबल करना है। जो आज तक भ्रम बने हुए हैं, मिथ्स बने हुए हैं, इन्हें तोड़ना है। वी हैव टू बिकम फ्लेक्सिबल। ओनली देन आपकी अप्रोच चेंज होगी, और जब आपकी अप्रोच चेंज होगी आपकी बातें चेंज होंगी। जब आपकी बातें चेंज होंगी लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर वही मैग्नेट बन के घूमता है और आपका ऑरा एक्सपैंड होता है और लोग आपकी तरफ मैग्नेटिकली खींचे चले आते हैं। फ्रेंड सर्कल बेहतर होता है, मनी अट्रैक्ट करते हो, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, और करियर्स में भी ग्रोथ पाते हो, रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो जाते हैं। मनी रेकी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि रेकी पैसा ले आती है। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेके आपको इतना मैग्नेटिक करती है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अपॉर्चुनिटीज अपने साथ पैसा ही लाती हैं। दिस इज हाउ मनी रेके वर्क्स। ऐसा नहीं है कि पैसों को मैं ऐसे रेके दे दूं। पैसों के कौन से 7 चक्र हैं? इट्स नॉट ब्रीदिंग। हाउ इज इट गोइंग टू कम टू यू? सो पीपल आर मेकिंग स्कैम्स, पीपल आर मेकिंग गिमिक्स। ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर किसी क्लाइंट ने आपको आके कहा सर मेरी मनी रेके कर दो, मेरे पास पैसे की कमी है, आप उनको बोलो पेशेंस रखो, चक्रास पे काम करेंगे, पॉइंट्स पे काम करेंगे, पर्सनालिटी चेंज होगी। आप शायद 10 रुपए ढूंढ रहे हो, मैं आपको 100 करवा दूंगा, आप इतना ले आओगे, पर भरोसा रखो। ठीक है? सो द नेक्स्ट थिंग इज कार्मिक लेसन्स ऑफ द चक्रास। हर चक्र आपको एक कर्मों का लेखा जोखा सिखाने के लिए आया है। ध्यान से देखिए, क्राउन चक्र, ये जो सबसे ऊपर है, आपको क्या सिखाता है? क्राउन चक्र कहता है अपने ईगो को भगाओ और अपना डिवाइन पर्पस ढूंढो। आप सब इस क्लास में आए हो, मे बी यू ऑल आर सीकिंग योर डिवाइन पर्पस इन रेके हीलिंग, है ना? आप यू वांट टू बिकम अ हीलर, आप अपना इतना समय देने के लिए तैयार हो, बिकॉज यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलते, यहाँ कोई कुंडली बना के नहीं देगा, यहाँ क्लाइंट के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। डॉक्टर की तरह, जैसे एक डॉक्टर बेचारा किताबें खोलता है घर जाके, 50 साल का डॉक्टर भी घर जाके किताबें खोलता है,
हर बार एक नया केस आ जाता है, कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, उसको पहले कोई बीमारी होती है, कोमॉर्बिडिटी होती है। डॉक्टर सोलोमन मेरे साथ समझ पाएंगे, और जो लोग भी डॉक्टर्स हैं उन्हें पता होगा कि अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आप उस बीमारी के चलते नहीं खा सकते। डॉक्टर को आप जब बताते हो, वो घर जाके फिर स्टडी करता है कि कल अगर इसकी सर्जरी करनी है और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो ये दवा नहीं दे पाऊंगा मैं, तो उसको अल्टरनेट ढूंढो। ठीक है ना? सो ये जो डिवाइन पर्पस है, तो मे बी आपको लग रहा है कि आप इतना होमवर्क करने को रेडी हो, तभी आप इस चीज को सीख रहे हो, तो मे बी दिस इज योर डिवाइन पर्पस, सो गिव योर 100% टू इट। ठीक है, ईगो नहीं रखनी है कभी भी। थर्ड आई चक्रा क्या सिखाता है? सी बियॉन्ड अपीयरेंसेस एंड इल्यूजन्स। माया जाल के पीछे लोगों को देखिए। लोग आपके सामने मीठे बन के ही आएंगे। पीपल विल कम टू यू विद अ वेरी हैप्पी फेस। आओ मेरे साथ बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो, कम एंड इन्वेस्ट विद मी, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, लेट्स गो आउट, आई एम इन लव विद यू, आई हैव अ रिलेशनशिप, आई वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद यू, या मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, आई गिव इट टू यू। तो आप हर बार अगर ऐसी चीजों में फंस जाते हो, यू एंड अप गिविंग इन एंड ट्रस्टिंग रॉन्ग पीपल अगेन एंड अगेन। अगर आपको लगता है आपके साथ ये पैटर्न चला आ रहा है, वही लोग आते हैं, आपको चीट करके चले जाते हैं, एंड देन फिर 2 साल बाद या 1 साल बाद आ जाते हैं, दोबारा चीटिंग करने लग जाते हैं, और आप हर बार फंसते चले जा रहे हो उनकी बातों में, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए दैट दिस चक्र नीड्स टू बी रिपेयर्ड। अब आपका सवाल होगा, मैम इनको ठीक कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे? तो टेंशन नहीं लेनी है, हर चक्र के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कैसे ठीक करेंगे। ठीक है? देन इज द थ्रोट चक्रा, जो आपके गले में है। ये कहता है स्पीक योर ट्रूथ विदाउट गिल्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी अपना सच बोलिए पर लड़ाई नहीं करनी है, और सच बोलने के बाद फिर गिल्टी नहीं फील करना है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से अनहाइजीनिकली है या बहुत गंदी तरीके से बात कर रहा है, सीधा बता दीजिए कि यू डोंट स्पीक पोलाइटली, या आप सुनना ही नहीं चाहते हो, या आप में पेशेंस नहीं है, या फिर वो बुरा मान रहा है तो मान जाए, कोई गिल्टी नहीं होता है। बस आपको ये नहीं कहना तुम्हें समझ नहीं आती है, पेशेंस है तुम्हारे अंदर है कि नहीं है, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। सिंपली यू कैन से बी पेशेंट, यार समझ लो, थोड़े देर में समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं कल बता दूंगा, फिर भी नहीं आएगा तो मैं परसों बता दूंगा, यार तुम मुझे कभी भी पूछ लेना। और अगर वो फिर भी चिल्ला रहा है तो आप कह दो कि आप बहुत बदतमीजी से बात करते हो। अब उसको बुरा लगता है तो लगता रहे, पर आप चिल्लाएंगे नहीं। ये होमवर्क आपको खुद ही करना है। मैं सिखा सकती हूँ, रास्ता दिखा सकती हूँ, आप उसको यूज कैसे कर रहे हो ये आपका होमवर्क है, राइट? अ टीचर कैन टीच यू हाउ टू राइट APPLE एप्पल, पर फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन, घर जाके उसकी राइटिंग प्रैक्टिस और उसकी कलरिंग की, जब एप्पल रेड बनाए तो उसके लाइन से बाहर कलर ना आए, ये सारा होमवर्क आपका है। जहां फंस जाओ वहां बताने के लिए मैं हूं। ये ग्रुप कभी डिसॉल्व नहीं होगा, मैं हमेशा इसी ग्रुप में रहने वाली हूँ। ठीक है? आप मुझे 6 महीने के बाद भी पूछेंगे, आई विल आंसर। बस क्वेरी क्लास रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है? नाउ कम्स द हार्ट चक्रा, आपका जो दिल है, चेस्ट प्लेट स्टर्नम के पीछे। ये कहता है फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स, लेट लव फ्लो फ्रीली। माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। आज अपने आप से बात कर लो। हम क्लास में, आई गेस वी आर सो मेनी पीपल इन द क्लास। ठीक है, वी आर अराउंड 89 लवली पार्टिसिपेंट्स इन द क्लास। अब तक आपको अगर किसी से कोई भी दिक्कत रही है ना, जाने दो, आज खत्म कर दो। आप देखिए इतनी अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। छोड़ दो लोगों को उनके हाल पे। हो गया बुरा, बहुत लोगों ने बुरा किया होता है, सबके साथ किया होता है। आई एम ऑल्सो नॉट अ वेरी डिफरेंट पर्सन, मेरे साथ भी किसी ने खराब किया। ठीक है? क्या पता अनजाने में, आज पिछले 8 या 9 साल से आई एम इनटू दिस प्रैक्टिस, मे बी बिफोर दैट मैंने भी किसी को हर्ट किया हो। ठीक है ना? किसी ने भी तो मुझे लेट गो कर ही दिया ना, तभी आज मेरी लाइफ में इतनी अबंडेंस है। तो आप भी लेट गो कीजिए, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। ठीक है? सोलार प्लेक्सस, आपका नाभि चक्र, इट सेज foster a stable sense of self-worth and personal integrity। foster का मतलब होता है रखना। जैसे आप देखा होगा आपने, डॉग्स होते हैं छोटे छोटे, सड़क पे लोगों को मिल जाते हैं, डॉग शेल्टर्स को। जब तक वो डॉग्स को कोई अडॉप्ट नहीं करता, डॉग शेल्टर्स एड चलाते हैं, प्लीज फॉस्टर दिस डॉग फॉर 10 days। फॉस्टरिंग का मतलब होता है किसी को टेम्परेरीली अपने पास रखना। जैसे अगर आपका कोई नीस या नेफ्यू आपके शहर में 20 दिन के लिए किसी काम से आ रहा हो, तो आप कहें अरे क्या होटल में रहोगे, 20 दिन मेरे घर में रह लो।
तो जब आप इंग्लिश में किसी से कहोगे तो आप बोलोगे आई एम फॉस्टरिंग माई नेफ्यू फॉर 20 days, अब ये 20 दिन मेरे घर पे रहेगा। तो सोलर प्लेक्सस यही कहता है, फॉस्टर अ स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड पर्सनल इंटेग्रिटी, कि अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाइए, ईगो से बाहर निकलिए, गॉड कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलिए, बट पर्सनल इंटेग्रिटी एंड सेल्फ वर्थ होनी चाहिए। अगर मुझे कुछ आता है, ठीक है, मैंने अगर किसी चीज के लिए पढ़ाई की है, नॉलेज ली है, ठीक है, अपनी डिग्री की है, मुझे वो चीज अच्छे से आती है, तो मैं अपनी बात पे ज्यों के त्यों रहूंगी, बट अनस्टेबल नहीं होंगी। कोई सामने वाला आकर मुझे कहे मैंने तो यूट्यूब पर देखा था, मैंने तो यहाँ सुना था, ऐसा तो कोई कह रहा था, तो भाई मैं अपनी 12 साल की डिग्रीज को कुएं में नहीं फेंक दूंगी कि उसने यूट्यूब पर सुना था। दैट इज ऑल जेनेरिक थिंग्स। यूट्यूब, गूगल, एवरीथिंग इज सुपर जेनेरिक है वो। वहां किसी के लिए कोई पर्सनलाइज रीडिंग्स नहीं है, ठीक है। दैट इज ऑल क्लिक बेट, यू क्लिक, दे गेट द व्यूज एंड इट्स डन, ऑल द अकाउंट्स आर मोनेटाइज्ड, दिस इज हाउ द इंटरनेट वर्क्स। अगर गूगल इतना ही ज्यादा रिलायबल होता, सारे कॉलेजेस एंड स्कूल्स बंद हो गए होते, हमारा एजुकेशन से खर्चा खत्म हो गया होता। इस टाइम एजुकेशन पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है लोगों का, हमारा खत्म हो गया होता ना। हम फ्री में गूगल से पढ़ते, सब लोग डॉक्टर बन जाते, फिर अभी गूगल वाला डॉक्टर हमें खोल देता और फिर वो कहता ओ माय गॉड, मैंने तो यूट्यूब पे ऐड आ गई थी उस टाइम, मैंने वीडियो बंद कर दिया, अब इसको स्टिच बैक कैसे करना है, ये तो मैंने सीखा ही नहीं, चलो जाने दो, लेट इट द पर्सन डाई, अगले वाले में ध्यान दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू लर्न समथिंग, लर्न द क्राफ्ट फुली फ्रॉम एन एक्सपर्ट, ठीक है। सो इंटरनेट वगैरह को भगाना है, ठीक है। यहाँ को देखो, पढ़ो, सुनो, फॉर फन इट इज गुड, फन एंड गेम्स इज फाइन, बट डोंट टेक दोज जेनेरिक थिंग्स वेरी सीरियसली, ओके, दे आर जेनेरिक रीडिंग्स। नंबर 7 के लिए इस हफ्ते का हॉरोस्कोप, नंबर 7 वाले के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं आगे, वो किस मंथ में है, वो किस ईयर में है, उसका क्या प्लानिटरी पोजीशन है, सब 7 नंबर वालों की लाइफ एक जैसी नहीं होती। Yesterday was Shah Rukh Khan's birthday, I guess. And there were so many people who are born on the 2nd of November. Are they all living Shah Rukh Khan's life? Are they all the King Khans? No. He has a specific number set. Others have a specific number set. हर कोई अपने कर्मा को जी रहा है। वही कहते हैं चक्रास। We are all here to learn the karmic lessons. ठीक है? Now the sacral chakra. Sacral chakra देखिए, the image देखिए उसकी. She has, opened her hands like this. She's very happy. She says that let go of guilt and shame and live life with passion. आपकी एज कुछ भी हो, आपको तैयार होना अच्छा लगता है, आप प्लीज होइए। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। छोड़ दीजिए लोग क्या कहेंगे, अरे ये क्या डाल दिया है, ये क्या कर लिया है, क्या ये इनकी एज है, नहीं बोलने दो। आप अपने अपने सेक्रल चक्रा को अच्छा करो। इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो जाती है जिनका सेक्रल चक्र अच्छा होता है, जो अपने पे काम करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। यू ऑल हैव सीन द एक्ट्रेस रेखा, हर सेक्रल चक्र इज फंक्शनिंग 10,000 आउट ऑफ 100। सी हाउ वेल शी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ। शी इज डिफाइंग ऑल द एज रूल्स कि हाँ जी इतनी एज है, ये नहीं करना है, सबको ही वो सुंदर लगती हैं। किसी भी एज ग्रुप का, कोई भी जेंडर का कोई भी इंसान देख ले, आप एक बार रेखा को देख लें तो आप देखते रहते हैं। वाई? शी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस कि मेरी एज क्या है, क्या ये मुझे सूट करेगा, क्या ये मुझ पे जचेगा। वॉट यू वॉन्ट टू डू प्लीज डू। इससे आपका चक्रा स्टेबलाइज होता है। आप अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं, मान्य है। लोगों के लिए डिसीजन लेना मान्य नहीं हो सकता, लोग कहेंगे मेरे लिए तुम क्यों ले रहे हो, अपने लिए तो ले सकते हो ना। मुझे अगर ये चश्मा नहीं पहनना तो मुझे नहीं पहनना है, दैट इज माई पर्सनल कॉल। हाँ, और अगर इसके बिना मुझे नहीं दिखता है तो मुझे पहनना है, तो मुझे पहनना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन आवर चक्रास। देखो, ये हर चक्रा ने अपना जो लेसन दिया है, अगर आप इन लेसन को भी पढ़ लोगे और पकड़ लोगे, इससे भी बहुत तेजी से बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रूट चक्रा की कैसे बैलेंसिंग होती है? ट्रांसेंडिंग फियर ऑफ योर नीड्स नॉट मेट। जिन लोगों को हमेशा डर लगा रहता है मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरे पास सेविंग्स नहीं बचेंगी, अभी नहीं खर्चा करेंगे, अगले साल कर लेंगे, अगले साल, और दिल छोटा हो जाता है, अरे अगले साल कर लेंगे, करते करते 10 साल निकल गए। अब क्या रियलाइज हुआ, पैसे तो इतने सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है, अब एज ही नहीं रही वो चीज करने की, अब क्या करेंगे यार लेके, अब तो वेस्ट हो जाएगी। प्लीज डोंट।
अगर आपको पता है आपके पास इनफ है, जितनी जरूरत है उतना है, और थोड़ा सा स्पेयर हो सकता है आपकी लाइफ को बिना हिलाए, सो बाय दैट थिंग, अपने लिए वो चीज कीजिए। लिव अ लिटिल, थोड़ा सा जी लीजिए। ठीक है, फैमिली है, सभी के पास है, वी ऑल हैव टू सपोर्ट। बट अगर आपको अच्छा लगता है, यू ऑल वांट टू गो टू दैट गिटार क्लास, आप अपने यंग डेज में नहीं जा सके जब आप 15-20 ईयर्स के थे, आज आपके पास अगर आधे घंटे का भी समय है ना, एक गिटार उठाइए और जाइए। क्या हो जाएगा वहां पे? लोग हंसेंगे 4 दिन, उसके बाद लोग क्या बोलेंगे, यार देखो इनको तो बहुत मजा आता है, इन्होंने तो अपनी एज जॉब सब छोड़ा हुआ है, आधा घंटा निकालते ही निकालते हैं। कॉन्फिडेंस आता है, पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है आपकी। हम अपने आप को मारते चले जाते हैं तो हमारे चक्रास जो भी सिखाएंगे हमें समझ ही नहीं आता, फिर बीमारियां लगती हैं जो हम आगे अगली 2 क्लासेस में सब डिटेल में कवर कर लेंगे। फिर हमें पता चलता है ओ माय गॉड, मैंने कितना कुछ कहाँ तक खराब कर लिया। ठीक है, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द रूट चक्रा, जो हम सबका मूल आधार चक्रा है, सबसे नीचे, जहां हमारे रेप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या प्राइवेट पार्ट्स हैं, इसे रूट चक्रा कहते हैं। जो पूनम मैम ने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास पूछा था, मैम ये सिंबल्स लिखे हैं एफर्मेशंस के आगे, ये क्या है? तो उसका आंसर है ये। देखिए ये ल लिखा है, ल के ऊपर बिंदु लगी है, लम। बिना माइक ऑन कीजिए, सब लोग बोल के देखिए, माइक ऑन नहीं करना है। रिपीट आफ्टर मी, लम। बोलिए बोलिए, माइक तो ऑन करना नहीं है, बोलिए। हाँ, अगर कोई घर में लोगों के बीच बैठा है तो मत बोलिए, अगर आपको लगता है लोग मेरी फैमिली को समझ नहीं आएगा, इट्स ओके। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, यूज द वर्ड लम। जब आप लम ऐसे बोलते हैं तो लिप्स में एक वाइब्रेशन सी होती है, इचिंग सी फील होती है। बोलिए, चलिए लेट्स डू ऑल टुगेदर, लम। हुई वाइब्रेशन, थोड़ी इचिंग सी महसूस होती है ना? ये जो लम साउंड है, जैसे ही आप लम चैंट करोगे ना, रूट चक्रा एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये रूट चक्रा की सबसे बड़ी बैलेंसिंग है, साउंड बैलेंसिंग। जैसे ही आप लम बोलते हो, रूट चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे पेट दर्द की गोली खाने पर सिर दर्द ठीक नहीं होगा, मेरा हेडेक हो रहा है और अगर मैंने खा ली है मेफ्टाल स्पास, मेरा सिर दर्द नहीं ठीक हो सकता, मुझे डिस्प्रिन ही खानी पड़ेगी, राइट? है ना? सिमिलरली अगर आपका रूट चक्रा गड़बड़ कर रहा है तो उसकी चैंटिंग है लम। ये आपका सबसे पहला चक्र है, जहां आप सबके, मेरे और हर एक के प्राइवेट पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहां पर बैठा हुआ है ये चक्र। इसका कलर है रेड, यानी कि लाल। अब यहाँ एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसको इग्नोर कीजिए, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक स्लाइड है तो सब लिखा हुआ है, छोड़ दो उसको। ठीक है, सो इट इज रेड इन कलर और ये घूमता है जब आप इसकी चैंटिंग करते हो, लम। ठीक है, रूट चक्रा का काम क्या है? रूट चक्रा आपको सैनिटी देता है, बैलेंस देता है। सैनिटी क्या होती है? व्हाट इज सैनिटी? समझदारी। आपने सुना है ना, कई बार लोग गुस्से में पागल हो जाते हैं, सामान तोड़ने लगते हैं, दे स्टार्ट ब्रेकिंग थिंग्स, थ्रोइंग थिंग्स हियर एंड देयर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिस पर्सन इज इनसेन, ये तो पागल हो चुका है। तो वो जो इंसेनिटी है ना, वो कहाँ से आई? रूट चक्रा इम्बैलेंस हो गया उसका। जब तक कोई इंसान सामान नहीं तोड़ रहा है, अपने आप को नुकसान नहीं कर रहा है, गुस्से में पागलपन की हद तक नहीं उतरा है, हम कहते हैं रूट चक्र थोड़ा थोड़ा खराब है। जो इंसान, कई आपने काफी लोग सुने होंगे, देखे होंगे, सामान तोड़ते हैं गुस्से में, खुद को भी हर्ट कर लेते हैं, लाइक आई जस्ट मेक अ फिस्ट एंड जस्ट आई हैव अ ग्लास डोर इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने उस पे दे मारा, अब वो तो टूटा ही टूटा, मुझे भी चोट लग गई और पता नहीं कब तक ठीक होगी, है ना? सो ऐसे अगर इश्यूज हैं तो हम इसको कहते हैं कि हमारे रूट चक्रा में प्रॉब्लम आ गई है, सैनिटी मिसिंग हो गई है। रूट चक्रा आपकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी रूट चक्रा से ही आती है, क्योंकि लाइफ रूट चक्रा में ही शुरू होती है। जब हम कंसीव करते हैं, जब वुमेन बेबी को कंसीव करती हैं, कहाँ करती हैं? यूट्रस में। तो यूट्रस आपके रूट चक्रा में ही तो पड़ी हुई है। जैसे ही साइंस ऑफ लाइफ आते हैं बच्चे में, सबसे पहले धड़कन शुरू होती है,
तो ये रूट चक्रा में ही शुरू होती है, ये आपका मूल आधार है, तभी इसे कहते हैं हिंदी में मूल आधार, योर बेसिक फाउंडेशन। ठीक है, हेल्दी रूट चक्रा जिसका भी होगा वो इंसान हमेशा ग्राउंडेड रहता है, यानी जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। उसके पास कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, वो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से उतरा हो, आप उसको कहिए ओ माय गॉड यू आर सो रिच, वो कहेगा अरे यार कोई बात नहीं, मेहनत से कर लिया, तुम भी कर लोगे, तुम तो मुझसे भी बड़ा ले लोगे। उनको ईगो नहीं होती, दे आर वेरी ग्राउंडेड, वेरी जेंटल पीपल, लाइक उनको पता होता है मेहनत से किया है कोई भी कर सकता है, उन्हें पता है उन्होंने मेहनत किया, और अगर तुम करोगे तुम्हें भी मिल जाएगा। These people with such kind of an attitude have a very healthy root chakra. ये हमेशा देखो, क्योंकि किसी से जेलस ही नहीं होते, इनसिक्योर ही नहीं होते, तो ये सेफ रहते हैं हमेशा। मुझे आपसे जेलसी नहीं है, मैं आपके लिए खुश हूँ, आप मुझसे बड़ी गाड़ी लाइए, आई एम वेरी हैप्पी, रादर मैं मोटिवेशन ले रही हूँ आपसे कि अरे इसने ली, आई विल ऑल्सो डू माई जॉब एंड मुझे भी मिलेगी। Then we say that the root chakra is happy and the root chakra is working fine. जिन लोगों को अब देखेंगे ब्लॉक्ड रूट चक्रा कैसे पकड़ना है, देखिए आप डॉक्टर हैं, जब आप हीलिंग्स करेंगे आपका क्लाइंट आके कहेगा मुझे नहीं पता मुझे क्या है, मुझे ठीक करो, मेरा तो मन उदास रहता है। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं भारती मैम, डॉक्टर से बात करते हैं ना, डॉक्टर भी पूछता है, हम चाहे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, पता है दिल की बीमारी देखता है, वो भी पूछता है क्या दिक्कत है, हमें देखकर तो वो कुंडली बतानी नहीं शुरू हो जाता, अच्छा तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है तुम्हें स्टंट डलेगा, नहीं, वो पूछता है क्या तकलीफ है, व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, आपको चोकिंग फील होती है, हार्ट में हैवीनेस फील होती है। वैसे ही आप भी अपने क्लाइंट से जब बातें करोगे ना, जब हम क्लाइंट मैनेजमेंट की स्लाइड में जाएंगे आज से 4 क्लासेस के बाद, वहां मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी, बट अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जब क्लाइंट आता है हम क्लाइंट के साथ थोड़ी देर बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हम वहीं पे बातें निकाल लेते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ब्लॉक्ड रूट चक्रा वाले कौन से क्लाइंट्स होंगे, ऑलवेज डिप्रेस्ड, मुझे बहुत डिप्रेशन है, मेरा डिप्रेशन नहीं जा रहा, मैं कुछ भी कर लूं मुझे खुशी नहीं होती, कितना भी पैसा आ जाए कितना भी कुछ हो जाए मेरा मन उदास ही रहता है। लिख लो अपनी शीट में, जो आप लेजर लगाओगे डायरी लगाओगे, डिप्रेशन टिक, मतलब रूट चक्रा का एक पॉइंट तो मिल गया। फीलिंग अनसेफ एंड थ्रेटन्ड, हमेशा डरे रहेंगे, मैम मेरे पास करोड़ों रुपए हैं पर मुझे लगता है मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, अभी और होने चाहिए, मेरे घर वाले मुझसे लड़ रहे हैं, मेरी किसी से बन नहीं रही है, आई एम वेरी इनसिक्योर, किसी को लाइफ में कुछ अच्छा करते देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाता है, चाहे मेरे पास उनसे ज्यादा हो, होते हैं ना कई लोग, आपसे ज्यादा है उनके पास बट आपका इतना सा देखकर भी वो अपसेट हो जाते हैं, उनकी गलती नहीं है, वो पर्सनल आपके साथ नहीं हो रहे हैं, उनकी तो बेचारों की बीमारी है। एज अ हीलर आप एक टाइम के बाद इन लोगों को बीमार लोगों की तरह दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको इन पर तरस आता है फिर कि ओ माय गॉड दिस पर्सन हैज अ इम्बैलेंस रूट चक्रा। हैविंग लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ड्राइव, ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली बीमारी, काम लटकाना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, कौन सा कोई जल्दी है, कहाँ समय निकला चला जा रहा है, जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं इनका भी रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन इश्यूज हैं, कल कर लेंगे मैम, परसों कर लेंगे, ऐसा ही दिमाग चलता है मैम, मेरा मुझसे इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया जाता, रूट चक्रा ब्लॉकेज। ठीक है, फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम पीपल, लोगों से कटा कटा महसूस करना, यू फील लाइक देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन यू एंड पीपल। हाउ, देखिए शुरू से शुरू करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखो, जो इंसान डिप्रेस रहेगा वो ऑफ कोर्स अनसेफ फील करेगा, जो अनसेफ फील करेगा वो घर से बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको घर में ही ठीक लगेगा, लोगों से तो वो मिलेगा नहीं, फ्रेंड सर्कल उसका खत्म हो जाएगा, अच्छा खासा इंसान इंट्रोवर्ट बन जाएगा, इंट्रोवर्ट भी नहीं शाय, बात ही नहीं करनी किसी से, डर लगता है लोगों से, ऐसा करने से लोगों से डिस्कनेक्शन हो जाएगा। अब लोगों से डिस्कनेक्शन हो जाएगा तो 4 दिन तो लोग बुलाएंगे, अरे मिलने आ जाओ आ जाओ, अब तुम जा ही नहीं रहे हो जा ही नहीं रहे हो जा ही नहीं रहे हो, तो लोग आपको बुलाना छोड़ देंगे, क्योंकि वो बुला बुला के थक गए। फिर आपको क्या लगने लगेगा, अरे मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं है, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, फिर हमारे ट्रिगर्स जाग उठते हैं, तो ये चक्र और खराब हो जाता है।
जिन लोगों को वरी लगी रहती है और अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमेशा एक अनचाहा डर, आपने बहुत लोगों से सुना होगा, मैम पता नहीं किस चीज का डर लगता रहता है, रियली डोंट नो व्हाट्स बॉदरिंग मी, माय हार्ट इज ऑलवेज रेसिंग, मेरा दिल बहुत तेजी से भागता रहता है, मुझे पता नहीं है मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है। ये वही लोग हैं जिनका रूट चक्रा ब्लॉक है। जब आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, देन you have a problem of not feeling confident in yourself and always worrying। ठीक है, रूट चक्र ठीक कैसे होगा? रूट चक्र ठीक करने के लिए सबसे पहले योगा, योगा पोजेस में अभी आपको आगे बता दूंगी। योगा करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, योगा करना इम्पोर्टेंट नहीं है। डूइंग दोज योगा मुद्राज इज नॉट इम्पोर्टेंट। इफ यू कैन डू, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, यू कैन डू इट। इफ योर हेल्थ डजंट अलाउ, नो प्रॉब्लम। बट दिस इज अ क्लास, यहाँ तो हमने सब सीखना है ना, मैं आपको सब कुछ दूंगी मैटर। बट अगर आप योगा नहीं कर पाते, आपको शौक नहीं है, आप कहते हो मैम मुझे लम की चैंटिंग करनी है और जो नीचे कुछ चीजें आप बता रहे हो ये करनी है, मुझे योगा नहीं करना है, थम्स अप, नो प्रॉब्लम। ओके एवरीवन, सी बिकॉज नॉट एवरीबडी वांट्स टू डू इट, ठीक है ना? ठीक है, योगा आसन्स मैं अभी अगली स्लाइड में दिखाती हूँ आपको। मेडिटेशन, अगर आप एफर्मेशंस देते हो, आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड वाली, जैसे हमने फर्स्ट एफर्मेशंस करी थी, बार बार एफर्मेशंस देते रहते हो, या बैठ कर लम की चैंटिंग करते हो, लम लम, तो आपका ये चक्रा हील होता है और बैलेंस होता है। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है मैम कितनी देर करनी है ये चैंटिंग? 5 बार से शुरू कर लो, फिर 11 बार पे ले जाइए, स्टार्ट फ्रॉम 5 टाइम्स, गो टू 11, देन 21, देन 51, देन 5 मिनट्स, देन हाफ एन आवर, जितना समय आपके हाथ में है। इसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता, पर करना जरूर है। ठीक है सर? अभिजीत जी, अगर आप आज बहुत बिजी हैं तो 2 बार बोल लीजिए लम लम, ठीक है, करा मैंने, अपनी रूटीन नहीं तोड़नी है। जिस दिन अच्छा टाइम था उस दिन आधा घंटा भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और रेके में कोई समय नहीं होता है, तो अगर आज भारती मैम ने 3 बजे की थी लम की प्रैक्टिस, तो कल अगर वो शाम को 6 बजे करेंगी तो भी चलेगा, परसों रात को 12 बजे करेंगी, देन इज ऑल्सो फाइन, बट यू हैव टू डू इट डेली, ठीक है? और आज अगर भारती मैम ने 3 बार लम बोला और कल 6 बार बोल दिया तो भी कोई प्रॉब्लम, इट इज जस्ट योर कंसिस्टेंसी दैट यू आर डूइंग इट। ओके, now comes the grounding exercises। grounding, what is grounding? you all know earth एक नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करने वाला हमारा ना ग्राउंड है। जब हम धरती पे खड़े होते हैं, हमारी बॉडी के भी 2 पोल्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, हमारी बॉडी में जितने भी नेगेटिव आयंस बनते हैं अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी कहा जाता है नंगे पैर चलो, जितना नंगे पैर चलोगे उतनी ज्यादा ग्राउंडिंग होगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम बचपन से नंगे पैर चल रहे हैं, मेरी तो ग्राउंडिंग हुई नहीं। तो वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि कॉन्शियसली नहीं किया। जब हम कॉन्शियसली कुछ करते हैं ना, कॉन्शियसली होता है जानते हुए कि हम ये इसी के लिए कर रहे हैं, चीजें असर तब करती हैं। ऐसे तो नंगे पैर हम पूरा दिन घूमते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपने 15 मिनट निकालिए, स्लीपर्स उतारिए, घर के अंदर टाइल्स पे चलिए, बाहर कच्ची जमीन पे चलना चाहते हैं, गार्डन में चलना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, छत पे चलना चाहते हैं, जहां पर भी, पर जमीन से जुड़िए। आपकी जब ग्राउंडिंग होगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिनको लगता है कि मैम मुझे तो प्लांट्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, यू कैन गो डू गार्डनिंग ऑल्सो। यहाँ हगिंग ट्रीज का मतलब ये नहीं है कि जाकर पेड़ों को आप गले लगा लें, ठीक है? यहाँ पर हमें चिपको मूवमेंट नहीं करना है, उसका ये मतलब है कि आप प्लांट्स एंड ट्रीज की भी टेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है? डाइट, डाइट अच्छी कीजिए अपनी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स कंज्यूम कीजिए, रूट चक्रा अपने आप अच्छा चलेगा। अभी मैं बताऊंगी कौन से फूड्स खाने हैं। जो लोग क्रिस्टल्स यूज करना चाहते हैं, जिन्होंने इस बैच में आई गेस एस्ट्रोलर्न गोल्ड लिया था, उनके क्रिस्टल्स मेरे पास से चार्ज होकर आएंगे आप सबके पास। जिन्होंने एस्ट्रोलर्न गोल्ड नहीं लिया था, आप कहीं से भी आपको मिलते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेशन नहीं करनी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हर एक इंसान का अपना पर्सनल कॉल है, ठीक है? बट जो लोग क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है,
रूट चक्रा के क्रिस्टल्स होते हैं रेड जैस्पर, कार्नीलियन या ऑब्सीडियन। इन्हें अपने हाथ में पकड़िए या गोद में रख लीजिए या अपनी पॉकेट में डाल के बैठ जाओ या आपके सामने रख लो। इसे देखते हुए चैंटिंग स्टार्ट करो, लम। ये क्रिस्टल्स आपके चक्रा को क्विकली बैलेंस करते हैं। अब है जर्नलिंग। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास भी बोला था आपको डायरी लीजिए और लिखना शुरू कीजिए अपनी डायरी के अंदर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नलिंग नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा ठीक हुए हो या नहीं। हो सकता है आज की क्लास में पूनम मैम के कुछ ट्रिगर्स हो सकता है जैसे ही 9 क्लासेस खत्म हो मैम के सारे ट्रिगर्स रिजॉल्व हो गए, नो ट्रिगर लेफ्ट। उन्हें कैसे पता चलेगा रिजॉल्व हुए कि नहीं? अगर वो रेगुलरली जर्नल करती हैं अपनी चीजें कि अब मेरा ये चीज कंट्रोल हो गया है, मेरा ये चीज कंट्रोल हो गया है। तो अगर वो 20-22 दिन के बाद उन डायरीज को खोलेंगी तो उनको समझ आएगा यस इट हैज वर्कड फॉर मी। किसी के साथ गॉसिप ना करें, किसी को बताएं नहीं, अपने लिए लिखें। कल को जब आप क्लाइंट्स को देखोगे तो ये आपकी रिसर्च बुक्स बन जाएंगी। कोई आप जैसी नेचर का आ जाएगा तो आपको पता होगा अच्छा इसको इतने दिन लगेंगे ऑलमोस्ट। मैंने अपने लिए क्या किया था, इससे भी यही कराना है। डॉक्टर्स रखते हैं ना आपके पास आपकी फाइल्स के रिकॉर्ड्स, 20-20 साल तक भी उनके पास रहते हैं वो रिकॉर्ड्स। क्यों रहते हैं? आप केस स्टडी बन जाते हो। कोई आप जैसा और आ जाता है उसे सोचना नहीं पड़ता, उसको पता होता है उसको वो कॉम्बिनेशन दिया था वो ठीक हो गया था, इसको भी वही लगा। ठीक है। सिमिलरली वी डू द जर्नलिंग। रूट चक्रा की ये कुछ एफर्मेशंस हैं, इसमें से कोई भी एक एफर्मेशन उठा सकते हो। ये सारी एफर्मेशंस हैं, कोई भी एक एफर्मेशन उठा सकते हो। या फिर जो सबसे पहली स्लाइड में रूट चक्रा की एफर्मेशन थी, आई एम सेफ एंड आई एम ग्राउंडेड, वो भी कर सकते हो। एफर्मेशन ऐसा नहीं है कि मैम अगर वो कर ली तो कम होगी, यहां से एक कर ली तो ज्यादा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। एक एफर्मेशन करनी है बहुत है, 12 एफर्मेशन 15 एफर्मेशन नहीं की जाती। ठीक है। एक एफर्मेशन, हर इंसान की ना अलग एफर्मेशन होती है। हो सकता है मुझे ये अच्छी लगती है, आई एम सेफ इन माई बॉडी। हो सकता है आप में से किसी को अच्छी लग रही हो, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रांग। तो जो जिस एफर्मेशन की तरफ ज्यादा खिंच रहा है वो एफर्मेशन पकड़ लो और वही लिख लो और उसे ही पकड़ते के बोलते रहो लाइफ लॉन्ग। एफर्मेशन चक्रा पे बहुत तेजी से काम करती हैं, आपकी ब्रेन की रीवायरिंग होती है ना। ठीक है। Now these are the yoga asanas for the balancing of the root chakra और the मूलाधार। रिपीट कर रही हूँ प्लीज, फाइनल टाइम, प्लीज ग्रुप में बार बार ना पूछिएगा। जो लोग नहीं करना चाहते ना करें, जो करना चाहते हैं दे कैन डू इट। और अगर इन सारे पोजेस को रोज करना चाहते हो कर सकते हो, इनमें से एक करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ये वाला जो योगा पोज है गार्लैंड पोज, दिस योगा पोज इज द मोस्ट इफेक्टिव पोज। क्योंकि जब आप अपनी लेग्स को ओपन करके बैठते हैं इन मल आसना, हाथों को ऐसे पकड़ के, और जिनका बैलेंस अच्छा नहीं है तो आप हाथों को नमस्ते ना बनाएं, बेड को पकड़ के, चेयर को पकड़ के जमीन पे लेग्स को थोड़ा ओपन करके बैठें इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन में। इन्हें हिप ओपनर्स कहा जाता है। आप अपने हिप्स के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी स्टोर करके बैठते हो। अभी सब लोग क्लास में हो, अपने अपने हिप्स पे फोकस करो। आधे लोग अपने हिप्स को क्लेंच करके बैठते हैं, फिर हिप्स आर इन अ टाइटर पोजीशन। डर लगा हुआ है आपको, पता नहीं किस चीज का क्या हो जाएगा, जैसे अभी छत गिर जाएगी, अर्थक्वेक आने वाला है, अभी भागना है यहाँ से। ठीक है। ऐसे वाली इश्यूज हो सकती हैं। ठीक है। अगर आपको हिप आपके ओपन नहीं है तो ये बहुत पावरफुल हिप ओपनर है। अगर आप ये आसन रोज 10 सेकंड भी करते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी फ्लो बहुत तेज शुरू हो जाता है। ठीक है। हिप ओपनर्स के बारे में गूगल पे पढ़िएगा। हिप ओपनर्स बहुत पावरफुल एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है। सारी तो हर कोई नहीं कर सकता, ये बहुत सिंपल है। बेड पकड़ के बैठ जाइए, जमीन पे चेयर पकड़ के बैठ जाइए, सीढ़ी की रेलिंग को पकड़ के बैठ जाइए अगर नीचे तक आ रही है। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है देन क्लोज योर हैंड्स लाइक दिस एंड sit in this garland pose. This is very powerful to open the hips. आप नोटिस करेंगे, मैंने काफी लोगों से सुना है इन माय लास्ट क्लासेस, जब वो इस हिप ओपनर पोजीशन में बैठते हैं तीसरे या चौथे दिन वो रोने लग जाते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा रोता है। सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। होगा कब? जब आप पूरे फोकस के साथ करोगे। अगर सामने टीवी लगाकर बैठे हैं आप, यू आर वॉचिंग टीवी एंड डूइंग दिस, यू आर गोइंग टू फील नथिंग।
सिट इन साइलेंस, जहां कोई ना हो। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग कि हाँ भाई मुझे सांस आ रहा है, अब मैंने ऐसे बैठा है, अब जितना भी नेगेटिव एनर्जी है बाहर जा रहा है, आपको आपकी बॉडी बहुत लाइटर लगती है। ठीक है। नाउ रूट चक्र अगर किसी का ब्लॉक होता है तो फाइनली उसके हम फूड्स पे आ रहे हैं। तो रूट चक्र ब्लॉकेज के ने बीमारियां हैं कुछ, ये आप जो लोग लिख रहे हैं अभी लिख लो, नहीं तो जब ये कल रिकॉर्डिंग आएगी तब भी नोट डाउन कर सकते हैं। मेल्स के केस में, अगर आदमियों के केस में रूट चक्र ब्लॉक हो जाए तो आपको क्या बीमारियां होती हैं? शियाटिका हो सकता है, यानी कि लोअर स्पाइन से प्रॉब्लम शुरू होके पैरों तक आएगी। ठीक है। रेकरेंट किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, बार बार किडनी स्टोन्स होते चले जाएंगे। ठीक है जी। या फिर आपको मेल्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मूत्राशय की नली की इन्फेक्शंस। कितनी भी वो मेल हाइजीन मेंटेन कर ले, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। या फिर मेल्स जो एडवांस स्टेज के मेल्स हैं 45-55 टचिंग, प्रोस्टेट या प्रोस्टेट कैंसर वाला प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ठीक है। अगर आप एक फीमेल हैं, इफ यू आर अ फीमेल, ठीक है, सो क्या होगा? यहाँ आपकी यूट्रस है रूट चक्र में। सबसे पहले ये सारी बीमारियां, जितनी भी यूट्रस को लेकर बीमारियां हैं, all the problems which are regarding the uterus will start popping up one by one. PCOD, PCOS, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यहाँ पर भी लेडीज में भी हो सकती हैं, शियाटिका लेडीज में भी हो सकता है, लेडीज एंड जेंट्स दोनों में पाइल्स का प्रॉब्लम भी खड़ा हो सकता है। ठीक है। लेडीज में एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, ओवरीज में सिस्ट्स हो सकती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स बंद हो सकती हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, और मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जो आजकल सबसे कॉमन है कि मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, कि पता नहीं क्यों इनफर्टिलिटी है, बट टेस्ट तो सारे नॉर्मल हैं। ये वही लोग हैं जिनका रूट चक्र बंद है। आपके पास लेडीज आएंगी, मैम हमें पीसीओडी पीसीओएस है, आप उनके रूट चक्र की क्लीनिंग शुरू करेंगे। ठीक है। आप उसके बाद उनके 26 पॉइंट्स को, जब हम अभी लास्ट से लास्ट क्लास में सीखेंगे विच इज द लेवल 3 रेके, जब हम उनके 26 पॉइंट्स को हील करना शुरू करेंगे और ये चक्रा बैलेंसिंग अपनी करेंगे, उनकी करेंगे, 100% प्रॉब्लम सॉर्ट होनी स्टार्ट हो जाती। ठीक है। मूल आधार है, लोकेशन बेस ऑफ द स्पाइन है, यानी जहां आपका यूट्रस है वो सेंटर, ये इसकी लोकेशन है इस चक्र की। देखिए जहां ये व्हाइट डॉट है या जहां मैंने ये ब्लू डॉट रख दिया है। ठीक है। यहाँ पर ओके। कलर इसका रेड है। एलिमेंट को छोड़ देंगे, ग्लैंड्स को भी छोड़ देंगे, सीड साउंड पे आएंगे। सीड साउंड का मतलब होता है बीज मंत्रा। इस चक्रा का बीज मंत्रा है लम। ऐसे नहीं बोलना है लम 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 लम, कुछ नहीं होगा, उसे एक्टिवेशन देनी है। जो जितना लंबा बोल पाए, अगर आप इतना भी बोल पाते हैं ना, लम, ठीक है, ब्रेक लो, लम बोला, 1 सेकंड की ब्रेक लो, लम, फिर ब्रेक लो, लम, प्रैक्टिस के साथ ये लंबा होता चला जाएगा। ठीक है। रूट चक्र आपको सिक्योरिटी देता है, सेफ्टी देता है, सर्वाइवल देता है। अगर आपका रूट चक्र बैलेंस्ड है तो आप ग्राउंडेड महसूस करेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, सेफ फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे और सेंटर्ड फील करेंगे। आपको अच्छा लगेगा, आप किसी से जेलस नहीं होंगे। अगर आपका ये चक्रा इम्बैलेंस हो जाए, इनसिक्योरिटी आपको खाती चली जाएगी, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरे रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगे। लोग रिलेशनशिप्स में ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, ये वही लोग हैं जिनका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। ठीक है। एंजाइटी बढ़ती चली जाएगी, डिप्रेशन होने लगता है, डर लगने लगता है, एक अनचाहा सा डर, क्या होने वाला है, कभी कुछ गलत हो जाएगा मुझे लग रहा है। ये वही लोग हैं जिनका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, उन्हीं के साथ होता है ये सब। एक नॉर्मल इंसान अगर बैठा है, उसको कल का कोई डर नहीं लग रहा, रूट चक्रा बैलेंस है, कहीं ना कहीं तो बैलेंस ही है। ठीक है। फूड्स कौन से खाने हैं?
प्रोटीन रिच फूड्स आपका रूट चक्रा बैलेंस करते हैं। आपको अच्छे से पता है मास्टर क्लास के टाइम से, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था शायद, कि आपकी फूड चॉइसेस का रेके हीलिंग पे कोई लेना देना नहीं है। आपकी पर्सनल कॉल है, एग्स खाते हो, चिकन खाते हो, मीट खाते हो, वेजिटेरियन हो, वीगन हो, व्हाटसोएवर यू ईट, प्लांट बेस्ड डाइट खाते हो, जो भी करते हो वो सब आपका अपना पर्सनल कॉल है। अगर आपको अपने रूट चक्रा को बैलेंस करना है तो आप एग्स खा सकते हो, बीन्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, या लीन मीट। लीन मीट होता है चिकन एंड फिश। लाल जो मीट होता है, रेड मीट होता है, वो लीन नहीं होता। जितना भी वाइट मीट होता है वो लीन मीट होता है। ठीक है, रूट चक्रा है ना ये, तो रूट चक्रा बैलेंस कैसे होगा? रूट वेजिटेबल्स से। रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए रूट वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी। रूट वेजिटेबल्स मतलब जो हम इंडियंस हमेशा से खा रहे हैं, फिर भी हम इंडियंस में सबसे ज्यादा रूट चक्रा इम्बैलेंस है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसली नहीं खा रहे थे आज तक। जैसे मैंने आपको कहा था ना, जमीन पे नंगे पैर कॉन्शियसली चलिए। चल तो रोज ही रहे हो, एक बारी 15 मिनट खुद को बोल के कि ये मैं ग्राउंडिंग कर रही हूँ और 15 मिनट चप्पल नहीं पहननी, मुझे यहाँ चलना है। सबको बोलिए अपने घर में, मेरी 15 मिनट की ग्राउंडिंग चल रही है, मुझे कोई काम नहीं कहना। कॉन्शियस एफर्ट लगाओगे, रिजल्ट आएगा। तो वैसे ही हम सब बीट रूट्स खा रहे हैं, चुकंदर खा रहे हैं, वो भी जमीन के नीचे से खींचते हैं। बीट रूट की पे तो जड़ खाते हैं ना हम, पत्ते तो बाहर होते हैं, जड़ निकलती है जमीन के नीचे से, लाल लाल चुकंदर। ठीक है, पटेटोस, आलू भी जमीन के नीचे से निकलता है, ऊपर पत्ते होते हैं, नीचे से वो जड़ हम निकाल के खाते हैं आलू की भी। गार्लिक, आप लहसुन खाते हैं, लहसुन के भी ऊपर पत्ते होते हैं, वो भी जमीन के नीचे से आता है, वो भी रूट वेजिटेबल है। कैरेट्स, आप गाजरें खाते हैं, उसके भी ऊपर पत्ते होते हैं, नीचे जमीन के अंदर से कैरेट आती है, वो भी रूट वेजिटेबल है। उसके बाद आप टर्निप्स खाते हैं। टर्निप्स क्या होती हैं? आपकी शलगम। ठीक है, वो भी रूट वेजिटेबल है। जो लोग रेडिश खाते हैं, मूली खाते हैं, वो भी रूट वेजिटेबल है। तो जितनी भी रूट वेजिटेबल्स हैं जो जमीन के नीचे लगती हैं, जिन्हें खींच कर बाहर निकाला जाता है, पत्ते अलग करे जाते हैं, या पत्ते भी यूज कर लो, कोई बात नहीं, वो सारी चीजें खाने से भी आपका चक्रा इम्बैलेंस बैलेंस होता है। बट अगर आप कहें मैम हम तो बचपन से प्याज खा रहे हैं फिर भी क्यों मुझे पीसीओडी हो गया, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं कुछ कॉन्शियस चीजें नहीं की। तो सिर्फ एक खाना ना खाने की वजह से पीसीओडी नहीं हो रहा है। पीसीओडी इसीलिए भी हो रहा है कि हम यहाँ से गड़बड़ में हैं, हम डिप्रेस्ड फील करते रहते हैं, अनस्टेबल हैं, अनसेफ हैं, मोटिवेशन नहीं है, कल पे काम डालते रहते हैं, लोगों से कटते चले जा रहे हैं, स्ट्रेस ही लेते रहते हैं। यहाँ से शुरू हो रही हैं दिक्कतें। दिक्कतें इसीलिए नहीं है कि मैम मैंने तो खा लिए थे आलू, तो मैंने बहुत खाए फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। पहले वो प्रॉब्लम सॉर्ट करनी है, फिर ये फूड्स खाए जाएंगे, चीजें अपने आप बेहतर होंगी। ठीक है, रेड फूड्स खाने से भी रूट चक्रा बैलेंस होता है। टमाटर लाल होते हैं, लाल वाली शिमला मिर्च खा सकते हो, स्ट्रॉबेरीज खा सकते हो, रास्पबेरीज खा सकते हो, वाटरमेलन भी खा सकते हो। वाटरमेलन बाहर से हरा है पर काटने पे तो अंदर से लाल निकलता है ना, तरबूज, वाटरमेलन भी कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, नाउ इज द सीड साउंड फॉर दिस चक्रा फाइनली, LAM, लम, जिसको हिंदी में ल पर हम बिंदु लगाते हैं। एक चीज मेरी याद रखिएगा फाइनली, जब आपने ये प्रैक्टिस करनी है, आप लेट कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन 7 चक्रास की। अभी के लिए जब मैं जैसे 1 बाय 1 कराऊंगी, आज तो एक ही चक्र मिल रहा है आपको, तो आज एक ही करोगे प्रैक्टिस, अगली क्लास तक आराम से बेड पे लेट जाओ सोने से पहले। आप अपने दोनों हाथ चेस्ट पे भी रख सकते हो, पेट पे भी रख सकते हो, साइड्स पे भी रख सकते हो। जो लोग जमीन पे पालथी मारकर बैठना चाहते हैं, वांट टू सिट क्रॉस लेग्ड ऑन द फ्लोर एंड डू दिस, कर सकते हो। कोई मेरी तरह सोफा पे बैठ के करना चाहता है, कोई चेयर पे बैठ के करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिट और लाई डाउन एज यू फील कंफर्टेबल। आंखों को बंद करेंगे, इमेजिन करेंगे जो हमारा रूट चक्रा है ना, नीचे जो आपका प्राइवेट पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये पूरे रेड कलर में डूब रहे हैं, पूरा रेड कलर भर गया है यहाँ पे। और साथ साथ में चैंट करेंगे लम लम। चाहे आप ये करते करते सो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 बार करके आप अच्छा फील करते हैं, 5 बार आपकी पर्सनल कॉल है। आज 2 बार किया, यू हैव डन इट ट्वाइस टुडे,
टुमारो 10 टाइम्स यू वांट टू डू, हाफ एन आवर यू वांट टू डू, कर सकते हो। यहाँ पर रेके में ना वहम भ्रम और मिथ्स की कोई जगह नहीं है, बिकॉज रेके इज नॉट अ रिलीजन। जैसे अच्छा लगे करो, पर ऑर्गेनिकली करो, दिल से करो। 3 बार लम बोल लो, पर दिल से बोलो। आधा घंटा लम बोल रहे हैं, फोन चला रहे हैं, ध्यान कहीं और है, नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे ही क्लास अभी खत्म होगी, मैं आपको ग्रुप में एक मैसेज भेजूंगी जिसपे मैंने लिखा होगा ये रूट चक्रा की चैंटिंग कैसे करनी है। अगली क्लास में इसके ऊपर के 3 चक्र करेंगे, फिर उनका भी ऐसा ही मैसेज भेजूंगी, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर उसकी अगली बार और 3 करेंगे, फिर 4 में 3 जमा करेंगे तो 7 चक्र पूरे हो जाएंगे। फिर हम रेके लेवल 2 पे जंप कर जाएंगे। ठीक है एवरीवन, आपको प्रैक्टिस करनी है तो मतलब करनी है, आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये दिन दोबारा कभी नहीं आएगा जब रूट चक्र एक ही बार करना हो। इसके बाद फिर 3 चक्र और ऐड हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे मैम अब तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे। चलिए अभी मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। अभी कोई प्लीज अपना माइक ऑन मत कीजिएगा, देयर आर सम क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। ओके, पूनम मैम के क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। ठीक है सीमा मैम, अगर आपको ऐसा फील होता है तो थैंक यू। मोनिका गोदारा मैम, सोलर प्लेक्सस चक्रा आपकी नाभि में है, नेवल एरिया, बेली बटन। ठीक है। क्राउन चक्र रूपम कुमार द्विवेदी जी, इट इज ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, आपके सर के ऊपर है। ठीक है, और इसका कलर पर्पल है। इसका एक ही एफर्मेशन है, आई एम डिवाइन एंड आई एम लाइट। अभी क्राउन चक्र हमने डिटेल में पढ़ना है, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्राउन चक्र की जयंत सर इसीलिए एक्सप्लेनेशन नहीं दी है मैंने, क्योंकि वो क्लास में पढ़ाऊंगी मैं आप। ये एफर्मेशंस थी, मैंने एफर्मेशंस में जो जो जहां जरूरी था बता दिया। क्राउन चक्र तभी ओपन होता है जब नीचे के 6 चक्रास ओपन होते हैं। Okay, fine. राइट, Yeah. ओके। Preeti, okay, I'll repeat what I said about aura in English. I meant that we will never lock our aura. We will work on increasing our aura. We will work that our aura, if it is here today, over the time, it should be this big, and then this big, and then this big, that if somebody enters in my society, they know it from the gate of the society that there's somebody lives here who has a very good aura. This place is very positive. This is how we increase our aura. You meet some people, आप कुछ लोगों से मिलते हैं, that when you see them, you want to talk to them whole day. You want to sit with them, अब उनके साथ बैठ के सारा दिन बातें करना चाहते हो। Why? बातें तो आप जैसी ही कर रहा है, ऑरा अच्छा, उसका ऑरा बहुत ज्यादा है, वो आपकी अंदर की कमियों को अपने ऑरा से भर रहा है, तभी आप उनके साथ बैठना चाहते हैं। ठीक है। सुष्मिता मैम, हाउ कैन वी नो दैट आवर चक्रास आर ओपन और क्लोज? मैम आप अपने आप चेकलिस्ट से मैच कीजिए, मैच इट विद द चेकलिस्ट। आई विल गिव यू द चेकलिस्ट, ये आपके साथ पीडीएफ शेयर हो जाएगा। अगर आपको लगता है आप ओवर थिंकिंग करते हो, लोगों से डिस्कनेक्टेड हो, ग्राउंडेड नहीं हो, नेगेटिविटी में जीते हो, तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक ऐसे पता चलेगा मैम। यस यस मंजू मैम, डिप्रेशन क्योर कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। लोकेश साहू जी, यहाँ राहु वाहु का कोई लेना देना नहीं है। दिस इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजी लाल किताब और एनी काइंड ऑफ वैदिक क्लास। रेके में राहु की कोई जगह नहीं होती। आप सुबह रात के 12 बजे करो, सुबह 3 बजे करो। अगर राहु कालम देख के डॉक्टर ऑपरेशन करने लग जाते तो फिर बच्चे ना पैदा हो रहे होते लोगों के। फिर राहु काल लग गया, मैं तो सुई कैंची नहीं उठाऊंगा, तुम मरती हो तो मर जाओ, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ हीलिंग क्लास, हीलिंग सीख रहे हो आप सब। आप डॉक्टर्स की तरह हीलर्स हो। हीलर्स राहु केतु नहीं देखते। हेल्प करनी है, समय देखकर घड़ी देखकर हेल्प नहीं होती। ऐसा होता है कभी डॉक्टर बोल दे आपको कि आज राहु काल लंबा चलेगा, आज तो आपका काम नहीं हो सकता, आप ऐसा करो कल आना। इंसान का एक्सीडेंट हो गया, उसको अभी सर्जरी चाहिए, करेंगे वो? ठीक है। लम की प्रैक्टिस म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं या खुद बोलकर? खुद ही बोलना पड़ेगा रजनीता जी। जो लोग पंडितों से मंत्रोच्चारण करवा लेते हैं ना, उसका फल भी पंडित ही ले जाते हैं। अपने मुंह से बोलिए, चाहे 10 बार ही बोल लीजिए, आपको फल तभी मिलेगा। हेमा मैम, आपको कैसे पता चलेगा आपका चक्रा बैलेंस है? जो उसमें पॉइंट्स लिखे थे ना मैम, जब वो चीजें आपको महसूस होनी बंद हो जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा आपका चक्रा बैलेंस है। अगर आप आज लोगों की फोटोज को जूम कर करके देखते हो, ठीक है, कि इसके पास ये है, जेलस फील करते हो, इनसिक्योर फील करते हो, लोगों से मिल नहीं रहे हो,
और अगर 2 महीने के बाद आप लोगों को नहीं देखते हो जूम करके, आप उसको देखते हो, आप कहते हो ओ माय गॉड क्या बढ़िया यार, ये एंजॉय कर रहा है, मैं भी करूंगी, हो गया बैलेंस। ऐसे पता चलता है। नहीं विवेक जी, चैंटिंग नहीं होती है योगा करते समय, वो ब्रीदिंग करो बस। चैंटिंग बता दिया, बैठ कर या लेट कर। कनिष्का मैम, अगर रूट चक्रा ब्लॉक है तो जरूरी नहीं है कि ऊपर के भी सारे चक्र ब्लॉक होंगे। कई बार रूट चक्रा ब्लॉक होता है, थोड़ी सी एनर्जी तो जा ही रही होती है, कुछ कुछ चक्रास वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तभी मैंने कहा था जब एफर्मेशंस करो सातों चक्रों की करो, और जब आप चैंटिंग शुरू करेंगे ना सारे चक्र पढ़ने के बाद, तो फॉर लाइफ आप सातों चक्रों की रोज चैंटिंग करेंगे। ठीक है राहु सर, लोकेश सर, मैं आपको बता चुकी हूँ, राहु वगैरह नहीं होता है यहाँ पर कुछ, आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है मैम, किसी को ओवर ड्रिंकिंग से निकालना है, सोनिया मैम ये इसके लिए अलग क्लास है, वो हम करेंगे। आदतों को ठीक करने के लिए अलग बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, वो करेंगे। वो बहुत एक अच्छी चीज सिखाने वाली हूँ मैं आप सबको। Ma'am, how do we protect ourselves from psychic attacks, especially on the root chakra? Shashank sir, there are nothing as such called psychic attacks. Nobody is doing psychic attacks on anybody. But there is an evil eye. People look at you, they sometimes feel jealous of you. So आपका aura, आपकी energy deplete हो जाती है. When you start doing your chakra chantings, already your aura increases so much, आप पे कोई psychic attack नहीं होता। आपने कभी नोटिस किया, नजर सिर्फ कॉमन लोगों को लगती है, फिल्म स्टार्स को तो किसी की नजर नहीं लगती, वो तो अपनी पूरी लाइफ इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं, उनका कोई मिसकैरेज नहीं होता, उनके साथ कुछ गलत नहीं होता। यहाँ एक नॉर्मल लेडी बता दे तो उसका दूसरे महीने में मिसकैरेज हो जाता, पीपल से अरे बता दिया था तो हो गया। उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वो इतना ज्यादा अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, टाइम एनर्जी, अपने आप को इतना ग्रूम करके रखते हैं, अपने चक्रास को इतना अच्छा रखते हैं, इतना पावरफुल रहते हैं कि किसी की भी कोई इविल आई आएगी ना तो यहीं से बाहर निकल जाएगी। तभी हमें बार बार उनसे बात करने का मन करता है, उनकी मूवीज देखने का मन करता है। हमें होता है कि अगर कोई सेलिब्रिटी है वो कैसे इतना मेंटेन कर रहा है। और फिर लोगों का वही ना, सेक्रल चक्रा खराब है, जब कुछ ना मिले अरे इनके पास तो अंधा पैसा है तो हो गया है, ऐसा नहीं। somebody's mic is open, जो भी हो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। जयंत सर प्लीज क्लोज योर माइक सर। ओके मैम, क्या इसी ट्यून में बोल सकते हैं? जी मुंह से ही बोलेंगे मंजू मैम, और कहाँ से बोलते हैं, मैं मुंह से ही बोल रही हूँ। लम, just wait a moment, wait a moment everyone, my baby is here, just wait a moment, just wait a moment. I'm so sorry everyone, I'm so sorry, my baby is very small. Okay, so yes मंजू मैम, आपने मुंह से ही बोलना है, लम लम, लाइक दिस, सिंपल। ठीक है, थैंक यू हेमा मैम। मुझे भी आप लोगों से बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं। मेरी इस क्लास में बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि ना क्वेश्चंस इतने लॉजिकल आ रहे हैं। आई एम लाइकिंग इट कि आप लोग ऑलरेडी एक हायर प्लेन पे हैं। थैंक यू राजेश्वरी मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है सीमा मैम, प्रैक्टिस शुरू करो। अगर सातों चक्र भी ब्लॉक है तो सारे खुलेंगे। मेरे तो सातों ही बंद थे मैम। आई हैड अ वेरी बैड फेज इन माई लाइफ, सबके साथ होता है मैम, सब खुल जाता है, पेशेंस। हाँ जी मनीषा कर ले मैम, जब हम 7 चक्रास की प्रैक्टिस करते हैं ना, वही एक चक्रा मेडिटेशन कहलाई जाती है। ठीक है शशांक सर, डू और एनर्जी गेट्स। सर ये अभी आप क्लास से आगे जा रहे हैं, आप आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए प्लीज। दिस लेट्स नॉट क्रिएट अ चिट चैट ग्रुप, है ना। आज की क्लास में ऐसा कुछ नहीं हमने पढ़ा, तो हम वहीं तक रहें जो क्लास से रिलेटेड हो। जब हम आगे जाएंगे तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है मनीषा कर ले मैम, अपना क्वेश्चन जल्दी से पूछ लो। थैंक यू एवरीवन। ओके ठीक है शशांक सर, सब कुछ कवर करेंगे, कॉर्ड कटिंग वगैरह सब सिखाया जाएगा, सब कुछ कवर करने वाले हैं, कुछ नहीं बचेगा। आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग अनटर्न्ड। फिर भी रह जाएगा शशांक सर, ग्रुप ओपन है, प्लीज आप 11 AM to 8 PM क्वेश्चन पूछिए। आई एम ऑलवेज फॉर योर असिस्टेंस। ठीक है तो अभी जैसे ही क्लास खत्म हो रही है एवरीवन, मैं आपको एक मैसेज शेयर करने वाली हूँ। ठीक है कि आपने रूट चक्रा मेडिटेशन कैसे करनी है। लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। ठीक है चेयर पे बैठकर, सोफा पे बैठकर, जमीन पे बैठकर, यू कैन लाई डाउन ऑन द बेड, यू कैन लाई डाउन ऑन द फ्लोर, एनी वे यू वांट टू लाइक। ठीक है
दीपा मैम मैं नहीं सिखा सकती आप कैसे लिखेंगे, आपको जैसे मन करे आप लिखिए। जर्नलिंग आपने करनी है, जर्नलिंग इज अ थिंग आई हैव टोल्ड यू टू डू, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स। मैं आपकी कॉपी नहीं चेक करने वाली हूँ, आपका जर्नल है, आप आराम से बनाइए जैसे आपको लिखना है, जैसे लोग डायरीज लिखते हैं। ठीक है, आप जो जो भी चीजें फील करती हैं आप उसमें लिखिए, और रोज रोज लिखती चले जाइए, और देखिए 15 दिन के बाद आपकी चीजें बेहतर हुई होंगी ही होंगी। पहले जो बातें आप कर रहे होगे वो चेंज हुई ही होंगी, फिर आपको खुद पता चल जाएगा चीजें हो रही हैं अच्छी। ठीक है, अभिजीत सर कैन यू क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। मैम थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन हाँ नहीं है, बस जी, यही था कि जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं ना, this is very promising and I'm so much thankful and grateful to you थैंक for यू the सो way. मच सर, थैंक यू सो मच। आई ट्राई माई बेस्ट सर, आई ट्राई माई बेस्ट। आई अभी आगे की क्लासेस में आप सबको और अच्छा लगेगा, बिकॉज आई एम श्योर आप प्रैक्टिस करेंगे सब लोग, तो आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आने शुरू होंगे, और मैं वेट करूंगी आप सबके एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए। वही हमारा गोल है कि जब ये बैच खत्म हो तो आप लोग बहुत अच्छे हीलर्स बन के निकले, कि कभी मुझे हीलिंग की जरूरत हो तो आई कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट दैट, यस ओके गिव मी हीलिंग, बिकॉज खुद की हीलिंग एट टाइम्स नहीं हो पाती। ठीक है, ओके अभिजीत सर, Thank थैंक यू सो मच। thank you. Thank वासुकी मैम, बैकबोन इरेक्ट वगैरह वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इंसान लेटा है, कई बार टेढ़ा भी लेटा हो सकता है, ऐसी कोई यहाँ योगा नहीं चल रहा मैम, आराम से इजी होके कीजिए। ठीक है, संतोष जी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करती हूँ, सपोर्ट टीम करेगी, मैं बोल दूंगी। ठीक है जी, शशांक जी प्लीज क्विकली आस्क योर क्वेश्चन। Ma'am, just a comment. So, basically, my lower chakras, 3 chakras are very imbalanced, especially the root chakra. So all the points जो आपने बताए, तो I can so very well relate to it. And जो चीजें आपने remedies भी बताई थी, मैंने on off वो कर रहा था, फिर बंद हो जाती है and stuff. So I'm like, it looks very, as you know, sir just said, looks very promising, and I'm really looking forward to, you know, आई विल doing this in a much more systematic way. And I think the results, क्योंकि काफी चीजें ना लाइफ में मेरे work related, money related, career related, what was stuck, and like, yeah, it's just but Sir, I know where the problem is coming also, from. So yeah, आपके thank you, लिए ma'am. नहीं सर, एवरीवन इन दिस क्लास और मेरे पास्ट बैचेस में भी आई हैव टॉट मोर देन 3000 पीपल टिल नाउ, मे बी मोर। सो एवरीवन, जितने भी लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, नॉट्स ओपन होती चली जाती है, बस थोड़ा पेशेंस रखना है। हाँ जी, हाँ कि जी, जो चीज 20 साल से है, 20 महीने, हाँ जो जी, 20 महीने से है, 20 दिन, 20 हफ्ते, जो 20 हफ्ते से है 20 दिन, और जो 20 दिन से है 20 घंटे, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, बस इजी इजी चलेंगे तो वी विल रीच समवेयर, नहीं राइट। पता नहीं इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं, इस जन्म के पुराने जन्मों के भी हो सकते हैं. सो वी नीड टू रियली फोकस, बट थैंक यू, मैम. Yeah, yes, sir. Thank you so much. Okay. प्रिंस सर, आई डोंट नो सर, आई डोंट नो, सपोर्ट टीम करती है सब कुछ, मैं एक बार देख लूंगी, इफ आई टॉक टू समबडी आई लेट देम नो सर, थैंक यू। ठीक है, डॉबी शर्मा मैम प्लीज क्विकली अपना सवाल पूछ लीजिए। थैंक यू उषा मैम, थैंक यू सुरमनी मैम। हेलो मैम, मुझे ये पूछना था कि जर्नलिंग में हमें अपने इश्यूज लिखने हैं, राइट? जो मतलब हमारे साथ होते रहते हैं पूरे डेज में, इश्यूज राइट? नहीं लिखते ऐसा ही? मैम, अपने रोज के एक्सपीरियंसेस लिख लो, जैसे आज किसी चीज पे गुस्सा आ गया है तो लिख दो कि टुडे आई गॉट ट्रिगर्ड ऑन दिस। हर चीज डियर डायरी नहीं बनानी है 16-17 साल की लड़की वाली, चीजें वो लिखनी है जो एक्चुअली में आज प्रॉब्लम हुई, और फिर कल अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मत लिखो, परसों अगर ज्यादा 3-4 प्रॉब्लम्स हुई तो लिख लो। फिर ऐसे करते ठीक है। करते आप 1-1.5 महीने के बाद अपनी फिर डायरी को पुरानी डेट से मैच करो, यानी मान लो फिर हम उस दिन डायरी खोलेंगे कि 3 नवंबर को डॉबी मैम को गुस्सा आता था अगर कोई ऊंची बोलता था, तो आज 12 दिसंबर है तो उनको अब गुस्सा नहीं आता, शी चूजेस टू गो अवे फ्रॉम देयर, दैट मीन्स चक्रा बैलेंस हो रहा है आपके। आई वांट टू टेल यू हाँ जी, वन क्विकली थिंग पूछ लीजिए मैम। ओनली। नहीं, मुझे पूछना नहीं, मुझे बताना है, मेरा नाम राधा है। हाँ जी, ओके मैम, फिर आप जिसका हाँ जो नाम है ना अपने हाँ, स्क्रीन। अरे सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि वो मेल है ना, मैं वो चेंज नहीं कर पा रही हूँ, दैट्स व्हाई। अच्छा ओके ओके, बिकॉज मेरे लिए इशू है, मैं तो वही बोल पाती हूँ जो मैं देख पाती नहीं, हूँ। आई थॉट कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सर्टिफिकेट में डोबी ना है, दैट्स द मैम वो प्रॉब्लम। सर्टिफिकेट का काम भी मैं नहीं करती हूँ मैम, वो बैकएंड करेगा, आपको उनसे ही बात करनी पड़ेगी। ओके, मैं लिख चुकी हूँ थैंक यू ग्रुप मैम, में, ये थैंक यू काम सो मेरे नहीं, मच, आई एम जस्ट योर थैंक टीचर। यू। ठीक है, चलिए देन एवरीवन, You are wind cool, up the ma'am. class You are now. cool. Thank you so much for the lovely time and having trust on me and attending this lovely 2-hour session Thank you, with me. madam.
You're very patient. Thank You you, guys are ma'am. very patient. And we'll see you in the next class. अगली क्लास में मिलते हैं अगले 3 चक्रास के साथ. अभी भेज रही हूँ कैसे करनी है लंबी चैंटिंग एंड स्टार्ट करेंगे सब. ठीक है Thank you, जी? thank you, thank you very Thank you, much. ma'am. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you, Good ma'am. night, Thank you so everybody. much. Thank Please you take very care Good of night. yourself. Gratitude. Lots of gratitude, ma'am. Thank you. Gratitude. Thank you, Shashank sir. Thank you, everyone. God bless you all. May all chakras open and may all Amen. things align for you all. Thank you so much. God bless you. Take care, ji. Bye-bye. Thanks, Bye Agri. bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Very good night. Hare Krishna. Hare Krishna.